30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric, and prompt, trust-based administration with citizen-first and minimum government, maximum governance approach. The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better, with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. Number 2, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production as if in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT, IFSC, and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now, the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy
was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil, unquote. Vision for Vikasit Bharat. Our vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047. The trinity of demography, democracy, and diversity backed by Sabka Prayas has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, there is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit, unquote. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Grameen. Despite the challenges due to COVID,
Implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care, and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains,
primary and secondary processing and marketing and branding, Nano DAP. After the successful adoption of Nano Urea, application of Nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean, and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition, and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer with but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was our government which set up a separate department for fisheries, realizing the importance of assisting fishermen. This has resulted in doubling of both inland and aquaculture production. Seafood exports since 2013-14 has also doubled. Implementation of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana will be stepped up to 1. Enhance aquaculture productivity from existing 3 to 5 tons per hectare. 2. Double exports to 1 lakh crore rupees, and 3. Generate 55 lakh employment opportunities in the near future. 5 integrated aqua parks will also be set up. Lakpati Didi. 83 lakh SHGs. 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker said, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. Technological changes, new age technologies, and data are changing the lives of people and businesses. They are also enabling new economic opportunities and facilitating provision of high-quality services at affordable prices for all, including those at the bottom of the pyramid. Opportunities for India at the global level are expanding. India is showing solutions through innovation and entrepreneurship of its people. Research and innovation for catalyzing growth, employment, and development. Prime Minister Shastri, Prime Minister Lal Bahadur Shastri, gave the slogan of Jai Jawan, Jai Kisan. Prime Minister Vajpayee, Atal Bihari Vajpayee ji, made that Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. Prime Minister Modi has furthered that to Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, and Jai Anusandhan, as innovation is the foundation
of development. For our tech-savvy youth, this will be a golden era. A corpus of 1 lakh crore rupees will be established with 50-year interest-free loan provided. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low or nil. I repeat that sentence. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low or nil interest rates. This will encourage the private sector to scale up research and innovation significantly in sunrise domains. We need to have programs that combine the powers of our youth and technology. A new scheme will be launched for strengthening deep tech technologies for defense purposes and expediting Atmanirbharta. Infrastructure development. Building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation, the outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11,111 crore rupees. This would be 3.4% of our GDP. Railways. 3 major railway corridor programs will be implemented. These are energy, mineral, and cement corridor. Number 2, port connectivity corridors. And number 3, high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. "40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience, and comfort of passengers." Aviation sector. The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. Number of airports have doubled to 149. Rollout of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities under Udan scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts. Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities, focusing on transit-oriented development. Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. Viability gap funding will be provided for harnessing offshore wind energy potential for initial capacity of 1 gigawatt. Coal gasification and liquefaction
capacity of 100 metric tons will be set up by 2030. This will also help in reducing imports of natural gas, methanol, and ammonia. Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated. Financial assistance will be provided for procurement of biomass aggregation machinery to support collection. Electric vehicle ecosystem. Our government will expand this and strengthen the e-vehicle ecosystem by supporting manufacturing and charging infrastructure. Greater adoption of e-buses for public transport networks will be encouraged through payment security mechanism. Biomanufacturing and biofoundry. For promoting green growth, a new scheme of biomanufacturing and biofoundry will be launched. This will provide environment-friendly alternatives such as biodegradable polymers, bioplastics, biopharmaceuticals, and bioagri-inputs. This scheme will also help in transforming today's consumptive manufacturing paradigm to the one based on regenerative principles. Blue Economy 2.0. For promoting climate-resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with integrated and multi-sectoral approach will be launched. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was $596 billion, marking a golden era. That is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment, we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising
from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister, in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic, said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal." Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees, of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.03 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation, as announced in my budget speech of 2021-22, to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to Part B. Honorable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers
that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honorable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year. States too have benefited. States' SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues from subsumed taxes in the pre-GST 4-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade. As a result, the import release time declined by 47% to 71 hours at inland container depots, by 28% to 44 hours at air cargo complexes, and by 27% to 85 hours at seaports over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first started. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties.
However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with our government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayers' services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled, or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy step by step and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much-needed reforms. The government did that successfully, following a strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high, sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development and performance, effective delivery and Jan Kalyan has given the government trust, confidence and blessings of the people to realize whatever it takes, the goal of Vikasit Bharat, with good intentions, true dedication and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman ji. So, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। So I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी
2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। स्थापन हो सारी समस्त नजर रही आयकर स्लाब रे कौन परिवर्तन हेब यार भितर निराश कर निश्चय जो मैंने करदाता अच्छा कारण सरकार आयकर स्लाब रे कौन परिवर्तन करना गत वर्ष जो आयकर सीमा धार्य करा अर्थात नुआ एवं पुराणा आम देखुले 2.5 लाख था सहित 50,000 टंका स्टैंडर्ड डिडक्शन से नुआरे जी मैंने जाऊे 7 लाख टंकार सीमा जदि आपण रोजगार 7 लाख टंका कम ताहले आपण को कौन प्रकार टिकस देवाई पड़ू नाला ताही बर्तमान बलवत्तर रखिंट सरकार अर्थात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण घोषणा करिसेंति कि टिकस स्लाब रे कौन प्रकार परिवर्तन हेब नाही एवं दर्शकों निमंते आम कही रखिबू कि गत वर्ष जो टिकस स्लाब परिवर्तन करा जायथिला बा 7 लाख को अणा जायथिला सेही टिकस स्लाब रे चलित वर्ष अर्थात 2024 जून रे आपण माने पैठ करिवे एवं वर्तमान भी कौन परिवर्तन होई नाही अर्थात 2025 जून रे मध्य आपण जो टिकस पैठ करिवे वर्तमान रो नियम अनुसार आपण को पैठ करिबा पई पड़िबो अर्थात जे माने नुआ रे जाउचंती 7 लाख टंका पर्यंत कौन प्रकार टिकस देवाई पड़िबो नाही एवं जदि 7 लाख बाद रे हुए ताहेले पूर्व निर्धारित अर्थात पूर्व जो योजना रही से अनुसार से स्लाब रे जड़े टिकस पैठ कर बड़ खबर वर्तमान समय आम कहीपर कारण समस्त नजर रही है जिते बजेट उपस्थापन हुए बजेट रे कौन टिकस जे माने टिकस पैठ कर जे माने टिकस पैठ करुँच लाभ कौन ता उपरे समस्त नजर रही है किंतु आम देखिले वर्तमान आयकर स्लाब रे कौन प्रकार परिवर्तन होई नाही अर्थात जहाँ पुराणा चली आसीथिला गत वर्ष जहाँ घोषणा होइथिला आगामी समय 2024 रे तो आपण से अनुसार टिकस पैठ करेंगे ता बाद 2025 जून रे जेते बेले आपण टिकस पैठ करबा पई जिवे सही आधार रे ही टिकस पैठ करेंगे अर्थात वर्तमान जहाँ प्रचलित हेउछि से भली आउ किछि बड़ निष्पत्ति निया जाइछि बा बड़ घोषणा करा जाइछि से संपर्क रे मध्य आमे आपण माननकु सूचना देबु एवं टीवी स्क्रीन रे मध्य आपण माने देखि पारुचंती कोन कोन सब बड़ पदक्षेप निया जाइछि बा बड़ घोषणा करा जाइछि 2024 वित्तीय वर्ष रे कर आय 23.24 लाख कोटी टंका होइछि निश्चय एक बड़ उपलब्धि 2025 वर्ष रे आनुमानिक कर आय 26.02 लाख कोटी टंका रखा जाइछि से भली 2025 रे आनुमानिक खर्च 47.66 लाख कोटी टंका रखा जाइछि केंद्र सरकार बजेट उपस्थापन कर सारी परवर्ती समय कौन सब अपडेट रही आम आपको टीवी स्क्रीन रे देखाइबा पई चेष्टा करूछु 2025 वित्तीय वर्ष रे कौन परिवर्तन हेबो नाही टिकस पैठ अर्थात जो टिकस पैठ बा जो वर्तमान प्रक्रिया रही जो धारा रही टिकस स्लाब जहाँ रही ताहा ही बलवत्तर रहिबो कारण समस्त आशा रही कि टिकस क्षेत्र में सरकार कौन परिवर्तन करेंगे किसी घोषणा करेंगे किंतु ताहा होई नाही कारण आम देखिले अर्थमंत्री यही कथा कहले कि टिकस स्लाब रे कौन परिवर्तन नाही जहाँ टिकस रही अर्थात 2024 रे आमे जो अनुसार टिकस पैठ करबा से अनुसार ही 2025 रे मध्य आमे टिकस पैठ करबा तेणु जे माने आयकर को नहीं बा टिकस स्लाब को नहीं उत्साहर सहित अपेक्षा करथिले सेमाने निश्चय निराश होइथिबे कारण टिकस क्षेत्र में कौन प्रकार परिवर्तन होई नाही समान आयकर स्लाब जारी रहिबो एक कथा कहिसंती अर्थमंत्री अर्थात आमे गत वर्षर बजेट रे देखिथिले बड़ परिवर्तन होइथिला कारण विगत समय मानकरे मध्य दुईटी थिला गोटे पुराणा गोटे नुआ किंतु से समय थिला 2.5 लाख टंका टिकस स्लाब किंतु गत बजेट रे आमे देखिले सरकार नुआ टिकस स्लाब आरंभ करथिले बा सृष्टि करथिले एवं 7 लाख टंका पर्यंत नहीं जो मानकर रोजगार 7 लाख टंका पर्यंत रही कम रोचे से टिकस पैठ करने से पड़ू नाला तेणु चलित वर्ष समस्त आशा रही कि काले सरकार नुआ टिकस स्लाब रे 7 लाख रु 7 लाख 50 बा 8 लाख करि पारंती किंतु एसबू किछि होई नाही अर्थात जहाँ थिला व्यवस्था से व्यवस्था ही कार्यकारी हेब यह बाद आम टीवी स्क्रीन आपको देखा क्यों सब योजना बा क्यों सब दिगरे सरकार अधिक व्यवहार कर खर्च बढ़ाई मिडिल क्लास को पई आवास योजना आरंभ हेब कारण सबु बेले मध्यवित्त परिवार को नहीं चर्चा लगी रही था एवं आम देखुचे वर्तमान समय गरीब जी मैंने अच्छा बा जी मैंने बिलो पॉवर्टी लाइन बा गरीब सीमारेखा तले जी मैंने अच्छा से सरकार किसी ना किसी सुविधा दे आसुचंती किंतु जी मैंने मध्यवित्त परिवार बा जी मैंने टिकस स्लाब को जाई नाहंती किंबा रोजगार अति स्वल्प नुहे से माने वास्तव में केमिति घर खंडे तैयारी करि पारिबे तांकर स्वप्नर घर केमिति हेबो ताकु नै समस्तंकर अपेक्षा रहितिला एवं मिडिल क्लास को पई वर्तमान सरकार बड़ घोषणा करिसंती कि सेमानंकु आवास योजना रे मध्य शामिल करा जाई पारे झियोंकु सर्वाइकल कैंसर निरोधी टीका मध्य दिया जिवो
पीएम आवास योजना रे 3 कोटी लाभवान हेबे। पीएम आवास योजना को नहीं विभिन्न समय चर्चा और या द्वारा आहुरी 3 कोटी उपभोक्ता जोड़ी हेबे बा लाभवान हेबे। मिडिल क्लास को पई आवास योजना आरंभ हेबो। ए होची वर्तमान समय बड़ खबर बा जे माने मध्यवित्त श्रेणीर वर्ग अछंती लोक अछंती सेमानंको पई बड़ खबर कहा जाई पारे कि मध्यवित्तंको पई मध्य आवास योजना कार्यकारी हेबो। अर्थात एथिरु बुझा पड़ुची समस्तंको मुंड उपरे केमिति छातटीए रहिबो, समस्तंको पई घरटीए केमिति हेबो से दिगरे सरकार यथेष्ट गुरुत्व देउछंती एवं जत्नवान मध्य होइछंती। कारण मिडिल क्लास को पई अर्थात मध्यवित्तंको पई वर्तमान आवास योजना कार्यकारी हेबो। सेभली 9 रु 14 वर्षर झींकर मध्य टीकाकरण करा जिवो। झींकु सर्वाइकल कैंसर निरोध टीका दिया जिवो। कारण सर्वाइकल कैंसर को नहीं चर्चा और यार टीका मध्य आसी जाइछि, तेणु झील मानू टीका दिया जिवो। पीएम ग्राम्य गृह योजना रे 2 कोटी घर निर्माण करा जिवो। ए भी होछि सबुठु बड़ कथा कि पीएम ग्राम्य योजना रे 2 कोटी बासगृह निर्माण करा जिवो। एवं देखुचे आमे विभिन्न योजना रे बा विभिन्न समय केंद्र हुंतु राज्य सरकार हुंतु समस्तंक पई गृह निर्माण करूचंती एवं एही क्रम रे पुणी 2 कोटी गृह निर्माण हेबो पीएम ग्राम्य गृह योजना रे। निश्चय या द्वारा ग्रामांचल में रोहुथिबा बा सहरांचल में रोहुथिबा मध्यवित्त एवं गरीब श्रेणीर लोके उपकृत होई पारिबे। मिडिल क्लास बा जे माने मध्यवित्त अछंती सेमानंको मध्य आवास योजना रे सामिल करा जिवो। अर्थात मिडिल क्लास बा मध्यवित्त व्यक्ति जे माने अछंती परिवार जे माने अछंती जे माने चिंता रे रहुचंती कि आम पई घर खंडे केमिति हेबो, वास्तव में आमे निज टंकारे बा खर्च करी घर खंडे तैयारी करिबा पारिबा कि ए जो चिंता रहिथिला संभवतः एई खबर सेमानंकर चिंता निश्चय दूर करिवो। कारण मिडिल क्लास बा मध्यवित्तंक पई आवास योजना आरंभ हेबा पई जाउची। वर्तमान समय बड़ खबर एवं प्रतिटी अपडेट कौन रही आमे मध्य आपनक सहित विस्तृत भाव में आलोचना करूँ और आपण मानक विस्तृत भाव में सूचना पहुँचाइबू। डायरी क्षेत्र में विकास पई योजना करा जिवो। बजेट हेडलाइंस कौन सब रही आमे आपनक टीवी स्क्रीन माध्यम देखाइबा पई चेष्टा करूछु। डायरी क्षेत्र विकास पई योजना हेबो। प्रति घर को प्रति मास 300 यूनिट बिजुली मागणा मिलिबो। ए होची बड़ कथा। कारण प्रतिटी लोक बा प्रतिटी घरे केमिति बिजुली पहुँचो से उपरे सरकार जत्नवान एवं गुरुत्व देउछंती एवं एही क्रम रे 300 यूनिट पर्यंत बिजुली मागणा मिलिबो। जहाँ जे माने विद्युत उपभोक्ता अछंती बा गरीब श्रेणीर लोक अछंती सेमानंक पई खुशी खबर। पीएम ग्राम्य गृह योजना रे 2 कोटी घर निर्माण हेबो। सेभली मध्यवित्त परिवार पई आवास योजना मध्य आरंभ हेबो। बजेट प्रतिटी अपडेट उपर आमे नजर रखिथिलु एवं वर्तमान समय जहाँ सब हेडलाइंस रही से हेडलाइंस माने आपण टीवी स्क्रीन रे देखि पारुचंती। समस्तंक पई आयुष्मान भारत योजना कार्यकारी हेबो। केंद्र सरकार लगातार भाव में स्वास्थ्य सुरक्षा पई आयुष्मान भारत योजना कार्यकारी करिसंती। किछि राज्य रे होयतो गोटे व्यतिक्रम कहा जाई पारे कि आयुष्मान भारत सबु राज्य रे वर्तमान कार्यकारी होई पारु नाही, किंतु ता सत्वे सरकार आयुष्मान भारत योजना उपरे गुरुत्वारोप करूचंती। 9 रु 14 वर्षर झींकु टीकाकरण करा जिवो। ए मध्य गोटे बजेट हेडलाइंस झींकु सर्वाइकल कैंसर निरोधी टीका दिया जिवो। एभली एक गुरुत्वपूर्ण बा महत्वाकांक्षी पदक्षेप नेउछंती केंद्र सरकार। 1 कोटी घरे हेबो रूफटॉप सोलार व्यवस्था। कारण शक्ति क्षेत्र को नहीं आम सर्वदा चर्चा करी आसुथिले एवं विद्युत शक्ति हो बा कोयला शक्ति हो ए सबू को व्यवहार करी आमे केते दिन बा केते लंबा समय चली पारिबा ताकू नहीं अनेक चर्चा आलोचना आउ तारी भितर आमे देखुचे सौर शक्ति किभली भाव में वृद्धि हेबो बा सौर शक्तिर व्यवहार केमिति बढ़िबो ता उपरे केंद्र सरकार गुरुत्व दे आसुथिले एवं एही बजेट रे मध्ये आमे देखुचे ताहा प्रतिफलन होईछि। अंतरीण बजेट हेडलाइन सब कौन रही है टीवी स्क्रीन में देखिपुंट। पीएम आवास योजना रे 3 कोटी लोक लाभवान हेबे। अर्थात पीएम आवास योजना रे जे माने गरीब हिताधिकारी अछंती जहां पाखरे मुंड गुंजिबा पई घरटीए नाही सेमानंकु गृह जोगाई दिया जिवो। पीएम ग्राम्य गृह योजना रे मध्ये 2 कोटी हिताधिकारी जोड़ी हेबे। मध्यवित्त परिवार को पई आवास योजना आरंभ हेबो एवं मध्यवित्त परिवार को पई ए निश्चय गोटे बड़ खबर कहा जाई पारे। सेभली समस्तंक पई आयुष्मान भारत योजना मध्ये कार्यकारी हेबो। किभली भाव में समस्तंकर स्वास्थ्य सुरक्षा रहिबो बा स्वास्थ्य सुरक्षा समस्तंकु जोगाई दिया जिवो ता उपरे सरकार गुरुत्व देई आसुछंती। तेज दर्शक बंधु आम लगातार भाव में बजेट हेडलाइंस कौन रही आम आपको देखा ता सहित आम विस्तृत भाव में आलोचना करूँ और प्रतिक्रिया नबू जे मैंने अर्थनीति विशारद अच्छा विशेषज्ञ अच्छा ये बजेट को नहीं दृष्टिभंगी कौन किभली भाव में से बजेट को देखुंट
बा ए तमाम आम प्रतिक्रिया आपण मानक निकट में पहुँचाइबा चेष्टा करूँ। प्रभास मिश्र आम सहित रोचंती अर्थनीति विशेषज्ञ प्राथमिक प्रतिक्रिया आम नापी चेष्टा करवा सार आपको स्वागत करुच्ची बजेट को नहीं आपंकर मतामत नापी चाहिए बजेट केते दूर सुहाइला भली होईची बा नूतनत्व सब कौन देखुंट बजेट रे इंटरिम बजेट कौन पॉलिसी डिसीजन सेंटी गोटे नवार आशा देखा जाऊ ना स्वरूप आपनकर इनकम टैक्स रे स्लैब रे कोनोसी परिवर्तन करागला नाही जोटा कि आशा कराउथु काने पूर्व बजेट इतिहास रे देखिबे ताले 14टा अंतरिम बजेट को बजेट रे टैक्स स्लैब रे परिवर्तन नीचे लखे 10 रु 1.5 लाख सिमिलरली आपनकर बजेट रे करागला नाही तन पूरे इनकम टैक्स रो जो स्लैब हम दउतले से स्लैबटा वर्तमान रहला तेणु निष्पत्ति गोटे आशा कर जुलाई में अपेक्षा जुलाई मसरे किंतु सरकार बजेट से आगे स्पष्ट भाव से उदाहरण स्वरूप ग्रीन एनर्जी बड़ फोकस वुमेन डेवलपमेंट वुमेन जो पूरी बड़ी चेष्टा करेंगे तेणु रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने एग्रीकल्चर पूरी वृद्धि करे आगे बजेट एलोकेशन तेणु एबे जदि बजेट फोकस होनांती किंतु तांकर स्पीच माध्यम रे बजेट स्पीच रे कहते जे आगे कौन रहिबो बिल्कुल एवं आम टिकस को नहीं अनेक चर्चा करुले किंतु टिकस स्लैब रे से भली कोनोसी परिवर्तन हो पारि नाही ताकू नहीं आपनकर प्रतिक्रिया कौन रहिबो कारण टिकस को नहीं अनेक आशावादी थिले कि किछि स्लैब रे परिवर्तन हेबो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलिबो कना टिकस नहीं कि आशा करा रे जेहेतु अंतरिम बजेट टिकस नहीं कि हम जो परिवर्तन हवा कथा परवर्ती सरकार से निष्पत्ति नेबे परवर्ती सरकार में ना जो पूर्णांग बजेट हम एबे जो इलेक्शन सरकार से सरकार ही निष्पत्ति नेबे गोटे साधारण प्रक्रिया कारण ए हूँ मध्यवर्तीकालीन बजेट और जितेबले इलेक्शन हेबो निर्वाचन हेबो नुआ सरकार गठन हेबो आ जितेबले पूर्णांग बजेट आसीबो होय तो से समय किछि निष्पत्ति निया जाई पारे तेणु समस्तंकर नजर रहिबो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त प्रभास मिश्र आपनकर प्रतिक्रिया पाई। तबे दर्शक बंधु समस्तंकर नजर रहिथिला टिकस स्लैब रे कोन परिवर्तन करिवे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन रे सरकार किछि वृद्धि करिवे कि किंतु ताहा होई नाही अर्थात विगत वर्ष जो घोषणा करा जायथिला चलित वर्ष मध्य सेही घोषणा रे बलवत्तर रखिछंती सरकार अर्थात जो स्लैब रही से स्लैब अपरिवर्तित रही टिकस स्लैब को नहीं प्रतिक्रिया कौन रही आसतु शुणी नवा। For tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. टिकस घोषणा समय बा टिकस स्लैब परिवर्तन किछि होई नथिबा जेतेबेले अर्थमंत्री कहिथिले से समय आपण रिएक्शन आमे आपनकु सुनौथिलु कारण आयकर स्लैब रे कोनोसी परिवर्तन होई नाही। पुणी थरे आमे आपण मानकु जणाई दउछु कि पूर्वरु जो आयकर स्लैब रहिथिला अर्थात पुरुणा एवं नुआ पुरुणा रे कोन थिला 2.5 लाख पर्यंत आपनकर टिकस रहिथिला 2.5 लाख बाद रे जदि आपनकर रोजगार होउची टिकस पैठ करिवे एवं सेथिरे आपण 50,000 टंकार स्टैंडर्ड डिडक्शन पाउथिले सेहि बोली 80C रे मध्ये आपण माने 1.5 लाख टंका पर्यंत छाड़ पाउथिले बर्तमान ताहा बलवत्तर रहिबो अर्थात सेथिरे कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही एवं लोकंक पई इच्छा मध्ये रहिछि आपण पुरुणा टिकस व्यवस्था रे जिवे ना आपण नुआ टिकस व्यवस्था रे जिवे जदि आपण नुआ टिकस व्यवस्था रे जाउछंती ताहाले 7 लाख टंका रोजगार बा 7 लाख रु कम जदि आपनकर रोजगार होउछि ताहाले आपनकु कोनोसी टिकस पैठ करिबा पई पड़िबो नाही किंतु जदि आपण नुआ टिकस स्लैब रे जाउछंती अर्थात 7 लाख टंका स्लैब रे आपण जाउछंती ताहाले आपण 80C रो कोनोसी प्रकार लाभ उठाई पारिबे नाही कारण पुरुणा टिकस स्लैब रे जहाँ रही 80C रे आपण 1.5 लाख टंका पर्यंत
छाड़ पाई पारिबे किंतु आपण जदि नुआ टिकस स्लैब रे जाउचंती ताहेले 1.5 लाख टंकार कोनोसी प्रकार छाड़ आपनकु मिलिबो नाही। ए 1.5 लाख टंका केमिति छाड़ पांती से कथा मध्ये आपण माने जानिचंती। 1.5 लाख टंका छाड़ पाइबा पई हेले आपनकु सुकन्या समृद्धि योजना रे टंका रखिबा पई पड़िबो, बैंक रे आपनकर 5 वर्षिया फिक्स डिपोजिट करिबा पई पड़िबो बा केंद्र सरकारଙ୍କର 5 वर्षिया योजना जो सब प्रचलित हेउची से पोस्टाल हो बा कोनोसी नेशनलाइज्ड बैंक हो से सब बैंक रे जदि आपण 5 वर्ष पई डिपोजिट रखुचंती ताहेले सेथिरे आपण 1.5 लाख टंका पर्यंत छाड़ पाउथिले ताहा होची पुराना टिकस स्लैब रे। किंतु नुआ टिकस स्लैब रे 7 लाख टंका पर्यंत आपनकु टिकस दबा पई पड़िबो नाही एवं एथिरे किंतु 80C रो कोनोसी प्रकार लाभ उठाई पारिबे नाही। ए तो गोटे पदक्षेप बा गोटे घोषणा आमे सुनिले ता बाद जे माने झियो अछंती बा सेमानंको पई मध्ये गोटे बड़ घोषणा करा जायछि कारण सेमानंकर टीकाकरण करा जिवो। कोन टीकाकरण हेबो केमिति हेबो बजेट उपस्थापन समय अर्थमंत्री कोन कहिसंती सुनि नियंतु। Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. ए तो थिला झियोंको पई टीकाकरण संपर्क में जहाँ घोषणा करथिले अर्थमंत्री से भली आउ एक बड़ खबर होउची आवास योजना। कारण भारत सरकार बा प्रतिटी गणतांत्रिक राष्ट्र सरकार दायित्व होउची प्रतिटी नागरिक बा प्रतिटी परिवार रो मुंडरे केमिति छात खंडे देबा से केंद्र हुंतु बा राज्य सरकार हुंतु लगातार भाव में आमे देखुचे भरपूर चेष्टा करूचंती कि समस्तंको पई केमिति अंतत पक्षे बासगृह खंडे निर्माण होई पारिबो एवं एहारि भितरे केंद्र सरकार आउ एक बड़ पदक्षेप नैछंती जे माने मध्यवित्त अछंती अर्थात जो मानकर रोजगार कम ना से माने बीपीएल रे जाउचंती ना से माने उच्च रे जाउचंती से माने वास्तव में आमे देखे सर्वदा कष्टपूर्ण जीवन अतिबाहित करती और सेमानंकर स्वप्न सबुबेले स्वप्न रे रही जाए। तेणु सेमाने केमिति निजर स्वप्नर घरटीए पाई पारिबे बा मिडिल क्लास केमिति घर खंडिए पाई पारिबो ता उपरे मध्य सरकार गुरुत्व दैछंती एवं आवास योजना रे मिडिल क्लास बा मध्यवित्त परिवार को मध्य शामिल करा जिवो। अर्थमंत्री कोन कहिसंती सुनि नियंतु। PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. अन्यपटे ग्रीन एनर्जी को नहीं अनेक चर्चा वर्तमान समय आम देखुचे सरकार किभली भाव में ग्रीन एनर्जी आहरी वृद्धि हेब बा लोकंकर व्यवहार केमिति बढ़िबो ता उपरे गुरुत्व देउछंती से स्क्रैप नीति हो बा नुआ ईवी हो ए सब होची गोटे गोटे पदक्षेप एवं ग्रीन एनर्जी संपर्क में सरकारଙ୍କର घोषणा कोन रहिछि सुनि नियंतु। Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. Viability gap funding will be provided for harnessing offshore wind energy, potential for initial capacity of 1 gigawatt. Coal gasification and liquefaction capacity of 100 metric tons will be set up by 2030. This will also help in reducing imports of natural gas, methanol, and ammonia. Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated.
आमे समस्ते जानिचे केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना बा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हेउछि आयुष्मान भारत योजना जहां आम राज्य में कार्यकारी हो नाही कारण आम राज्य में बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना कार्यकारी हेउछि किंतु अन्य राज्य मानकरे केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना कार्यकारी हेउछि एवं समस्त व्यक्ति बा समस्त लोकंकर केमिति स्वास्थ्य सुरक्षा करा जिवो बा जेतेबेले कोनोसी असुविधारे पड़ती से माने केमिति चिकित्सित होई पारिबे एवं अर्थ केमिति खर्च न हेबो से दिग उपरे उभय सरकार यथेष्ट यत्नवान अछंती एवं गुरुत्व देई आसुचंती एई क्रम रे आयुष्मान भारत योजना संपर्क रे आउ कोन नुवा घोषणा होईछि ताहा मध्ये आपण सुनि नियंतु। Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. शुणुले आशाकर्मी अंगनवाड़ी कर्मी एवं जे माने अंगनवाड़ी को सहयोग करुचंती अर्थात हेल्पर सेमानंक पई मध्य आयुष्मान भारत योजना कार्यकारी हबो अर्थात आयुष्मान भारत योजना रे सेमाने मध्य जोड़ी हेबे सेमानंकर स्वास्थ्य सुरक्षा उपरे मध्य यथेष्ट यत्नवान बा गुरुत्व दैछंती केंद्र सरकार किंतु आमे आम राज्य रे देखुचे गोटे पटे राज्य सरकार योजना कार्यकारी होउची तेणु केंद्र सरकार योजना राज्य रे कार्यकारी होई पारु नाही किंतु अन्य राज्य मानकरे केंद्र सरकार योजना कार्यकारी होउची एवं निश्चय बा अंगनवाड़ी होंतु बा आशा कर्मी होंतु बा अंगनवाड़ी हेल्पर होंतु जेतेबेले एमाने आयुष्मान भारत योजना रे जोड़ी हेबे सेमानंक परिवार पई सेमानंक पई मध्य ए निश्चय गोटे बड़ कथा बा बड़ खबर हेबो कारण जे कोनोसी समय बा कोनोसी परिस्थिति रे स्वास्थ्य पई टंका खर्च करिबा पई पड़े आमे देखे साधारणतः भारतीय परिवार रे तली तड़ांत होई जानती कारण सेति प्रति के सचेतन न थांती बा इंश्योरेंस करिबा बा जेतेबेले स्वास्थ्य समस्या हेबो टंका आसीबो केउठु ए चिंता काहारो न थाई तेणु आयुष्मान भारत हो बा ए बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना हो ए सब गोटे गोटे बड़ पदक्षेप तेबे वर्तमान प्रतिक्रिया आसुची ज्योतिरादित्य सिंधिया बजेट को नहीं कौन तांकर मतामत रखिचंती आसंतु सुनी नबा। सही समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रतिक्रिया आम आपण पाखक पहुंचाइबा चेष्टा करूँ कारण वर्तमान मंत्री एवं से ई बजेट को किभली भाव में देखुंट जो आशा रही बजेट रे ताहा प्रतिफलित होईची कि आम से संक्रांतीय प्रतिक्रिया आपण निकट में पहुंचाइबू किंतु पूर्वर जमिति आम आलोचना करुथिले एवं विशेषज्ञ कहूथिले कि अंतरीण बजेट रे सेभली किछि बड़ खबर बा सेभली किछि बड़ परिवर्तन होई न पारे एवं वास्तव में आम देखुचे बा सेभली किछि गोटे आश्चर्य कला भली किछि कोनोसी परिवर्तन होई नाही। Already disappointed. Moreover, if you realize that all the incentives are given to the bridge companies, the performance linked incentives are not going for the really deserving companies, but for all the other companies which are manipulating it. Overall, I will say that people are rejected with this budget. There should have come something else better for this. बजेट जितेबाला उपस्थापन हो सारी बजेट को नहीं लोकंर प्रतिक्रिया कौन रही विशेषज्ञ कौन कहते आम लगातार भाव में से प्रतिक्रिया आपण निकट में पहुंचाइबू यार भितर जहाँ अनुमान करा कि जनकल्याणकारी योजना बा जनकल्याण जनता हितपाई किसी पदक्षेप सरकार नहीं पारती वास्तव में आम ताहा देखुचे बजेट रे सेभली किसी प्रतिफलन होउची एवं जोगाजोग उपरे सरकार यथेष्ट गुरुत्व देइछंती कारण वर्तमान समय चर्चा बा आम समस्ते जानिचे जेतेबेले जोगाजोग सुगम हेबो बा विकास सेतिकी त्वरान्वित होई पारिबो तेणु राज्य होंतु बा केंद्र सरकार होंतु से सड़क पथ हो विमान पथ हो रेल पथ हो सर्वदा ता उपरे गुरुत्व दे आसुचंती एवं विमान पथ बा केमिति आहुरी सुदृढ़ होई पारिबो से दिगरे मध्य सरकार गुरुत्व देइछंती 10 वर्ष रे 149 विमान बंदर निर्माण हेबो जहां संख्या 2 गुणा हेबो। हमारी इकोनॉमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। 2047 का जो एक रोड मैप दिया है प्रधानमंत्री या उस रोड मैप उस टारगेट को हम अचीव करेंगे हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। थैंक यू सर। आपण शुणुले राजनाथ सिंह को प्रतिक्रिया कहवा कथा कि आगामी समय भारतवर्ष आहुरी विकास हेबो एवं जो लक्ष्य रखा जाइछि कि विकसित भारत करबा पई सही टारगेट बा सही लक्ष्य रे आमे आगे चलुथिबा कथा बढ़े हमारी यही तो ख्वाहिश है टूरिज्म बढ़े। G20 में जो आए थे टूरिज्म की मीटिंग हुई थी कश्मीर में हम उम्मीद करते हैं कि बाहर से और लोग आएंगे टूरिज्म में और अभी बर्फ़ पड़ी है अच्छी तो स्कीइंग के सीज़न शुरू हो जाएगा उम्मीद करते हैं वो भी आएंगे।
बहुत अच्छा है, वो लखपति बनेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, उससे घर और भी आबाद होगा। हम उम्मीद करेंगे कि वो नरम रहेंगी, ये ना हो कि फिर शादियां टूट जाएंगी, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल की हालत तो वैसी हो रही है कि शादी ज़्यादा देर चलती नहीं है। उसकी तरफ भी हमें ध्यान चलना चाहिए कि कैसे घर चलें, घर आबाद रहें, शादियां आबाद रहें। शुणुले फारूक अब्दुल्ला प्रतिक्रिया जम्मू काश्मीर पर से विशेष भाव में आशा रखी से आशा किछिटा प्रतिफलन होउछि एवं आगामी समय सरकार केमिति आहुरी व्ययबराद बढ़ाइबे जम्मू काश्मीर को केमिति विकास रास्ता को नेबे से दिगरे मध्य कार्य कराजिबार आवश्यकता केवल गोटे क्षेत्र बा गोटे दिग उपरे सरकार गुरुत्व देई नाहंती आमे देखुचे प्रतिटी दिग प्रतिटी क्षेत्र उपरे गुरुत्व दिया जाइछि एवं एई क्रम पर्यटन क्षेत्र उपरे मध्य सरकार यथेष्ट फोकस करिसंती कारण आमे देखुचे विभिन्न देश जो माने पर्यटन को आधार करी तांको देश चलीछि कहले भूल हेबो नाही एवं किछि दिन तळे जो भली विवाद आरंभ होइतिला लाक्षाद्वीप को नै तापरे केंद्र सरकार आशा करा जाउथिला कि पर्यटन उपरे फोकस तो रही किंतु आहुरी किछि फोकस करि पारंती लाक्षाद्वीप को पर्यटन भाव में विकास करा जिवो एई घोषणा करा जाइछि कारण पर्यटन क्षेत्र लाक्षाद्वीप को नहीं मालदीप और लाक्षाद्वीप जितेबाला तर्जमा है ताकू नहीं अनेक चर्चा है और यही क्रम लाक्षाद्वीप विकास नहीं सरकार बड़ पदक्षेप नापी जाऊँगी शब्दों का अच्छा आचरण मिलेगा और जो भी अगर कुछ है सब्सटेंटिव अगर कुछ ठोस है इस बजट में तो सारे सबसे बड़े जो उद्योगपति जो मोदी जी के करीब हैं जो नए उद्योग में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए इस बजट में कुछ मिलेगा और वही इस बजट में हमने देखा। निर्मला जी ने ये भी कह दिया है कि जुलाई में जो हम बजट पेश करेंगे उसमें विकसित भारत की पूरी और तस्वीर आपको नजर आएगी। देखिए मुझे लगता है इसी में सरकार की अहंकार दिखती है। निर्वाचन हुआ नहीं है और ये अपने आप को विजेता घोषित कर रहे हैं। जनता जनार्दन है और कोई भी राजनीतिक दल भारत के जनता से अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। गरीबों का बहुत बड़ा फोकस किया है। 2 करोड़ आज घर बना के दे रहे हैं रूरल में। दैट इज अ वेरी बिग इंसेंटिव, बहुत बड़ा, इट्स वेरी अप्रिशिएबल। बट सर जो एक मिडिल क्लास उम्मीद कर रहा था कुछ टैक्स स्लैब शायद इलेक्शन ईयर है कुछ उनको चेंजेस हो या कुछ हो, वो कुछ ऐसा नहीं रहा। नहीं देखिए ये तो हम लोग को पहले पता था, इसमें भी कोई देश का भला होगा। जो गवर्नमेंट ने आज इस चीज़ को नहीं किया है ऑलरेडी, मतलब इसमें कुछ भलाई है इसलिए नहीं किया। रक्षा बजट काफी बढ़ा दिया 11% जो कि जीडीपी का काफी करेक्ट। तो इसमें तो और आत्मनिर्भर भारत के तहत काफी मैन्युफैक्चरिंग चली है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास। आने वाले दिनों में जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ये बजट उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। मेरे दृष्टि से उस बजट की अगर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट अगर मैं मानूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान की बात कही थी, सिर्फ कहे नहीं, उसको क्रियान्वयन करने के लिए आज बजट में 1 लाख करोड़ रुपया की एक कॉर्पस फंड की अनाउंस किया गया। जो संस्था, जो निजी सेक्टर की संस्था, प्राइवेट सेक्टर या इंस्टीट्यूशनल बॉडी लोन लेना चाहेगा, 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन देने की व्यवस्था है। उसकी सीधा लाभ भारत की नई पीढ़ी को, विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो टेक्नोलॉजी की नई दुनिया आ रही है, उसको भारत की नौजवानों में पूरी ताकत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन हो गया है। इनोवेशन एक जन आंदोलन की रूप ले रहा है और ये 1 लाख करोड़ रुपया की वित्तीय व्यवस्था एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया गया है। आने वाले दिनों में भारत एक जिम्मेवार देश के नाते विश्व समस्या की साथ साथ भारत की रोजगार सृजन, भारत की ईज ऑफ लिविंग, भारत में एक चरम सुखद स्थिति तक ले आने के लिए काम होगा। आपके मंत्रालय से दो सवाल है संबंधित सर कि एक जो 1 करोड़ 40 लाख लोगों को, युवाओं को स्किल्ड किया गया है और दूसरी तरफ 390 यूनिवर्सिटी खोले गए हैं पिछले 10 साल में, इसके बारे में थोड़ा जानना। देखिए, PM श्री के बारे में चर्चा हुई है, नए यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा हुई है, नए IIT, नए IIM, ये सारे जो उल्लेख किया गया है, ये सब उस दिशा में एक एक कदम है। स्किल इंडिया के तहत 1 करोड़ 40 लाख नई पीढ़ी की लोगों को स्किल, अपस्किल, रीस्किलिंग करने की बात कही गई है।
ये आने वाले दिनों में और गति पकड़ेगी। इस बजट जिस प्रकार की कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ी है इस बजट में, जिस प्रकार की देखिए 3 नया रेलवे कॉरिडोर की बात कही गई, इसकी सीधा सीधा अर्थ ज़्यादा लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा, ज़्यादा स्किल मैन पावर लगेंगे, लोगों की जीवन मान में बढ़ोतरी होगा। ये सीधा सीधा कहता है। ये बजट में अगर एक लाइन पे उसको कहूँ, वेलफेयर और वेल्थ क्रिएशन दोनों की संतुलन की ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जादुई करिश्मा है। अपन शुणुले केन्द्रमंत्री प्रतिक्रिया और केन्द्रमंत्री कहवा कथा राज्य सरकार केन्द्र सरकार जो विजन नहीं आगे चली बजेट से क्षेत्र में गोटे पदक्षेप बा गोटे क्रम कहले भूल हम ना, कारण ये बजेट द्वारा बा ये लोकाभिमुखी बजेट द्वारा ही देशर विकास बा देशर प्रगति संभव हो पार, जहाँ केन्द्रमंत्री परिप्रकाश करुले। जो विजन नहीं बर्तमान केन्द्र सरकार चली 2047 सुधा एक विकसित भारत गठन करने लक्ष्य, से दिगरे बजेट बहुत काम आसो। बजेट्र हेडलाइंस आम आपको टीवी स्क्रीन में देखा विगत 10 वर्ष में 390 विश्वविद्यालय खोल जाए, आगामी समय ए संख्या बढ़ा नहीं सरकार आशावादी अच्छा, अर्थात विश्वविद्यालय संख्या बढ़ 7टी IIT और 16टी ट्रिपल IT खोल जा सारी। तेणु शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न बलिष्ठ पदक्षेप नहीं आसुंच केन्द्र सरकार। देश में 15टी एम्स खोल जाए, अर्थात स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न समय आम पदक्षेप देखी आसुचे। गरीब और महिला ये चारों का समावेश था इसमें। अब प्रधानमंत्री आवास में 3 करोड़ 2 करोड़ घर और स्वीकृत करना, लाखपति दीदी SHG ग्रुप में 3 करोड़ की संख्या को निर्धारित करना, ऐसे कई योजनाएं हैं जो दिखाता है कि एक तरफ वेलफेयर भी है तो दूसरे तरफ 3 कॉरिडोर रेलवे का अनाउंस होना तो एक एक्सपेंडिचर भी है। तो ये समावेशी विकास का इससे बड़ा और कुछ उदाहरण नहीं हो सकता। कमेटी गठित करने की भी बात कही गई है आज के बजट में, इस पर क्या कहना? स्वाभाविक है, अब कमेटी जो गठित हुई है उसकी की चर्चा की गई है, आगे उस पर देखा जाएगा। विरोध कर रहा है, विपक्ष कह रहा है ये बजेट को जहाँ सब हेडलाइंस रही पुणी थोड़ा आम आपको कहीदेवाई चाहूँ 1 कोटी घर को रूफटॉप सोलार व्यवस्था करा, अर्थात किभली सूर्य शक्ति द्वारा देश चलो से दिगरे सरकार गुरुत्व दे आसीचंती एवं एई बजेट रे मध्य ताहा प्रतिफलन होईछि, कारण से कोयला शक्ति हो बा विद्युत शक्ति हो सर्वदा बा आगामी समय पूरा देश में पहुँचाइबा असंभव हो पारे, कारण दिने ना दिने नियंत्रित परिस्थिति सृष्टि करिब। तेणु तार विकल्प व्यवस्था कौन से दिगरे केन्द्र सरकार लगातार भाव में चिंता करि आसुचंती एवं आज निया जाइछि बड़ पदक्षेप, अर्थात 1 कोटी घर को रूफटॉप सोलार व्यवस्था रे संजोग करा जिवो। अगले बार जब रेगुलर बजट पेश करेंगे उस बीच का जो फासला है उसको पूरा करके साथ साथ पूरा 2047 तक विकसित भारत का नींव कैसे रखना है इतना सुंदर से रखा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं। इतना शानदार अंतरिम बजट जो पेश किया है आज, और कोई सेक्टर छूटा नहीं है। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के वेलफेयर, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, और जो GST का कलेक्शन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, इतना बढ़िया फाइनेंशियल स्थिति देश का आज मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचाया है कि हम दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट देश बन गए हैं आर्थिक व्यवस्था के मामले में भी। This budget submitted by our Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji is a great project. It will strengthen the Viksit Bharat Yatra. It will strengthen and it will cover all sections of the citizens of the country. So this budget is taking care of all the international policies also? Yes, it is all. सेभली जोगाजोग क्षेत्र उपर मध्य सरकार अनेक किछि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं, कारण आगामी 10 वर्ष में विमान बंदर संख्या 2 गुणा हेबो। आगामी 10 वर्ष में विमान बंदर संख्या 149 रे पहुंचाइबा नहीं लक्ष्य रखिछंती केंद्र सरकार, अर्थात वर्तमान
जदि आम देश कथा आलोचना करवा ताहले 150 रु अधा आपण धरी नियंतु अर्थात 75 पाखापाखि विमान बंदर रही से संख्या केमिति 2 गुणा हेबो एवं 149 पर जीव ता उपरे सरकार गुरुत्व देइछंती आगामी 10 वर्ष रे एही लक्ष्य हासिल करबा पई चेष्टा करिवे केंद्र सरकार से भली जोगाजोग क्षेत्र को आहुरी सुगम करबा पई केवल विमान कथा नुहे रेल क्षेत्र उपरे मध्य सरकार गुरुत्वारोप करिसंती एवं वंदे भारत योजना रे 40,000 बगी को अपग्रेड करा जिवो कारण आमे समस्ते जानिचे हमर वर्तमान जो ट्रेन चलाचल करूची से सबु अपग्रेड बगी नुहे जहा द्वारा ट्रेन रो गति कथा कहंतु बा समय कथा कहंतु एथिरे विलंब हेउची तेणु सरकार एक परिकल्पना करथिले वंदे भारत ट्रेन रो एवं आमे देखुचे द्रुतगामी ट्रेन अति सहजरे गोटे जगार अन्य जगह को लोके पहुंची पारुचंती यात्रार समय मध्य बंचुची तेणु 40,000 बगी को अपग्रेड करबा पई योजना रखिछंती केंद्र सरकार They are focusing on 4 areas which was apparent and that is basically women, farmers, young people and poor. In some ways 10 years they have been able to build what I call a reasonably good social security framework. Any society which has to become a developed society has to have a great social security for the people who are at the sort of end of the economic chain, and that's where India is now. With even now, it's a per capita poor country, but it's been able to build social security in the form of direct benefit transfer, in terms of free ration for 80 crore people, which has worked well over last 3.5 years, and it has been extended for next 5 years. It has also been able to provide pension scheme, insurance scheme, even farmers insurance, and so on and so forth. So overall, a social security net is being built without being very conscious about it, and I'm delighted that that is the runway on which India will be able to grow over next 25-30 years, because no country can become a developed country without the welfare of all its people and providing social security to them. And the growth momentum that is being dependent on various factors, but India has been a center of services to the world. Slowly, due to PLI and other framework, we are becoming very good. बजेट उपस्थापन होगा पर लगातार भाव में आम प्रतिक्रिया आपण निकट में पहुंचाई चेष्टा करुचु ता सहित बजेट्र हेडलाइंस कौन रही मुख्यांश कौन रही आम टीवी स्क्रीन जरिया आपको जन देवाई चाहूँ जमी मुझे पूर्व कहूली कि जोगाजोग क्षेत्र पर सरकार यथेष्ट गुरुत्व देती जमी पूर्व कहूली कि 10 वर्ष में विमान बंदर संख्या 2 गुण करने चेष्टा करेंगे केंद्र सरकार यह बाद 40,000 बगी को अपग्रेड अर्थात वंदे भारत योजना 40,000 बगी अपग्रेड हो यह बाद 517 नुआ रूट संजोग करा उड़ान योजना रे ए गोटे जोगाजोग क्षेत्र पर बलिष्ठ पदक्षेप केंद्र सरकार नेउछंती कहिले भूल हेबो नाही एबे आसंतु टिकस स्लैब को नहीं जो अनेक चर्चा हेउथिला टिकस स्लैब रे कोन परिवर्तन आवश्यकता थिला बा जो आशा रखा जाइथिला से आशा होयतो समस्तंकर धुलिसात होई जाइथिबो कारण समस्तंकर आशा अपेक्षा रहिथिला टिकस स्लैब रे किछिटा परिवर्तन हेबो एवं गत वर्ष बजेट रे जो घोषणा करा जाइथिला टिकस स्लैब अर्थात आमे दुईटी टिकस स्लैब देखिथिले प्रथमे तो 2.5 लाख पर्यंत टिकस स्लैब रहिथिला ता सहित आपण स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 टंका पाउथिले अन्यपटे नुआ टिकस व्यवस्था मध्य बा स्लैब सरकार लागू करथिले जेउथिरे आपण 7 लाख टंका रोजगार बा 7 लाख टंका रु कम जदि रोजगार करूचंती ताहेले कोनोसी प्रकार टिकस पैठ करिबा पई पड़िबो नाही तेणु समस्तंकर नजर रहिथिला कि टिकस रे सरकार किछि परिवर्तन करि पारंती किंतु वर्तमान कोनोसी परिवर्तन होई नाही एवं जेमिति पूर्वरु विशेषज्ञ कहूथिले ए होछि अंतरीण बजेट तेणु अंतरीण बजेट रे गुटे संपूर्ण रूपरेख देखिबा संभव नुहे जेतेबेले पुनी थरे नुआ सरकार गठन हेबो संभवतः से समय जदि सरकार पूर्णकालीन बजेट आसुचंती सेतरे किछि परिवर्तन करि पारंती किंतु जो टिकसदाता माने आशा रखिथिले कि टिकस क्षेत्र रे किछिटा होय तो रिहाती मिली पारे से आशा निश्चय मौली जाइछि कहिले भूल हेबो नाही अर्थात पुराना प्रचलित व्यवस्था 2023 रे जो घोषणा करा जाइथिला अर्थात
2024 जून समय आम जिते टिकस पैठ करने जावा आपन से नुआ किंबा पुराना व्यवस्था ग्रहण करिपारंती जदि पुराना व्यवस्था जाउचंती ताहले 2.5 लाख होची आपनकर टिकस लाभ 50,000 टंका आपन स्टैंडर्ड डिडक्शन पाइबे 80C रे आपन 1.5 लाख टंका पर्यंत छाड़ पाई परिबे जदि आपन नुआ व्यवस्था जाउचंती अर्थात नुआ व्यवस्था 7 लाख टंका बा 7 लाख रु कम जदि आपनकर रोजगार अछि ताहले आपनको कोनोसी टिकस पैठ करबा पई पड़िबो नाही किंतु 80C रे ए जगह रे आपन लाभ पाई परिबे नाही अर्थात 80C जे नुआ व्यवस्था रे जिबे तांको पई 80C रो कोनोसी आवश्यकता नाही जहाँ जदि आपन पुराना व्यवस्था रे जाउचंती ताहले 80C रे आपन 1.5 लाख पर्यंत छाड़ पाई परिबे से 1.5 लाख केमिति छाड़ आसुथिला से कथा मध्य आपण माने जानिचंती जदि आपन सुकन्या समृद्धि योजना रे टंका विनियोग करूचंती बा टंका लगाउचंती पीपीएफ रे आपनकर टंका रहुची किंबा ईपीएफ रे आपनकर टंका कटुची यह बात विभिन्न 5 वर्षिया स्कीम रही सरकार बा नेशनलाइज्ड बैंक हो पोस्ट ऑफिस हो ए सब जगह जदि आप 5 वर्षिया टैक्स सेविंग प्लान करूचंती बा 5 वर्षिया सर्टिफिकेट किणुचंती बॉन्ड किणुचंती ताहले 1.5 लाख टंका पर्यंत आपन छाड़ पाइबे ताहा पुनी पुराना स्कीम रे जदि आपन जाउचंती किंतु आपन जदि नुआ स्कीम रे जाउचंती अर्थात 7 लाख टंका टिकस स्लैब रे आपन जिबा पई चाहुचंती ताहले 80C रो आपनक पई कोनोसी आवश्यकता नाही सीधा सड़क हिसाब रे आपनकु टिकस दबा पई पड़िबो तेनु जो द्वंद्व रहिथिला जो चर्चा लागि रहिथिला से चर्चार वर्तमान अवसान घटिछि एवं टिकस व्यवस्था रे कोनोसी प्रकार परिवर्तन हो नाही 2024 जून रे आमे जो टिकस प्रणाली बा जो व्यवस्था रे टिकस पैठ करिबा 2025 जून रे मध्य समान धरण रे आमे टिकस पैठ करिबा एथिरे कोनोसी प्रकार परिवर्तन हेउ नाही अर्थात 2025 जून पर्यंत बा मार्च पर्यंत जो मानकर रोजगार जदि नुआ टिकस व्यवस्था रे जाउछंती ताहले 7 लाख टंका रोजगार बा 7 लाख रु कम जदि रोजगार होउची ताहले आपनकु कोनोसी प्रकार टिकस पैठ करिबा पई पड़िबो नाही किंतु 80C रो लाभ आपण ए जगह रे उठेई पारिबे नाही किंतु जदि आपण पुराना व्यवस्था रे जाउचंती ताहले 2.5 लाख होउची टिकस लाभ 50,000 पर्यंत आपण स्टैंडर्ड डिडक्शन पाइबे एहा बाद 1,50,000 पर्यंत आपण 80C रे मध्य लाभ पाई पारिबे ए होउची मोटामोटी टिकस को नै वर्तमान जहा अपडेट रहिची आमे आपण माननकु जणाई देबा पई चेष्टा करूछु किंतु जो आशा अपेक्षा रहिथिला टिकस को नै बा निश्चय समस्तंकु निराश करूथिबो कारण समस्तंकर अपेक्षा रहिथिला काले सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन रे किछि टंका बढ़ाई पारंती 80C रे किछि टंका बढ़ाई पारंती किंतु ताहा वर्तमान देखा जाई नाही अर्थात अर्थमंत्री सीधा सड़क घोषणा करिसेंती कि टिकस व्यवस्था रे कोनोसी प्रकार परिवर्तन होई नाही अन्यपटे कोरोना को नहीं आमे देखिथिले जो भली स्थिति रे गति करिथिला पूरा विश्व केवल भारतीय अर्थनीति नुहे विश्व अर्थनीति मध्य दोहली जाइथिला कहिले भूल हबो नाही एवं विगत वर्ष रु 2 वर्ष हलानी आमे देखुचे अर्थनीति मध्य ट्रैक को फेरिछि एवं खास करी कि भारतीय अर्थनीति जहाँ को पूरा विश्व सारा विश्व रे गोटे प्रकार वर्तमान प्रशंसा करूचंती एवं भारतीय अर्थनीति को उदाहरण मध्य दिया जाउची से दृष्टिकोण रु भारत पई बा ए बजेट समस्तंक पई एक गुरुत्वपूर्ण दिग थिला कहिले भूल हबो नाही एवं आशा अपेक्षा मध्य यथेष्ट रहिथिला किंतु जेमिति मु पूर्वरु कहूथिली कि विशेषज्ञंकर मतामत थिला अंतरीण बजेट से भली किछि होयतो परिवर्तन होई न पारे बा से भली किछि गोटे आश्चर्य कला भली खबर आसी न पारे एवं वास्तव रे आमे ताहा ही देखुचे एवं चिराचरित जेमिति प्रतिटी वर्ग प्रतिटी क्षेत्र उपरे सरकार फोकस करंती से भली भाबरे फोकस करी आसीचंती प्रभास मिश्र आम सहित लगातार भाबरे अछंती किछि समय पूर्वरु मध्य आमे तांको प्रतिक्रिया नउथिले श्रीयुक्त मिश्र आमे देखुचे वर्तमान धीरे धीरे बजेट कोन सब रहिछि हेडलाइंस स्पष्ट होई गलानी आपनकर मतामत पुनी थरे नवा पई चाहिबी वास्तव रे जनसाधारण जो आशा रखिथिले से आशा धुलिसात हेई गला कि नहीं धुलिसात हैला बोली हमें कहि परिबा नहीं कारण सरकारंकर एबे करिवार माने जदि से टैक्स को नै कि हमें देखबा टिकस को नै कि जे एबे सरकार टिकस को नै कि कोनोसी परिवर्तन करिवार उदाहरण नाही कारण आगु इलेक्शन आसी सरकार को अधिकार भी नहीं जेहेतु 4 मास सरकार मात्र 2 मास पर इलेक्शन हबो तेणु सरकार पूरा पूरी भाव अधिकार नहीं जे से ताकू परिवर्तन करि परिबे टैक्स स्लैब को जुलाई पर जेतेबेले सरकार लोक मानकर मैंडेट पाइबे जे 5 वर्ष पय सरकार करिए बोली सेतेबेले करियो तेणु एटा होची नीति नियम कथा तेणु धुलिसात पूरा पूरी भाव हेइनी आपण लोक मानकु जुलाई जाय अपेक्षा करिया पड़िबो जुलाई परे मध्य सरकार परिवर्तन करिवार सुजोग अछि सेतेबेले पूर्णांग बजेट जेते प्रेजेंटेशन हबो सेतेबेले टैक्स रे किसी परिवर्तन आनिबे एवं नुआ स्कीम्स इंट्रोड्यूस करिवे एथर बजेट रे आपण देखिबे कोनोसी नुआ स्कीम्स इंट्रोड्यूस हैला नाही कारण जे नुआ स्कीम्स इंट्रोड्यूस कले आपनकर जदि पूरा जेतु मैंडेट पाइ नांती आपण केमती करिवे तेणु मासे 2 मास पय सरकार अछंती एबे तेणु केवल आपनकर गोटे गोटे कि जदि जे पीएम आवास योजना जोटा थिला सेटा मध्यवित्त मान पई हेई
इम्प्लीमेंट कराई तेणु मध्यवित्त माने एबे सुजोगटा पाइबे एवं आयुष्मान भारत को जो एक्सटेंड करिसंती आपनकर आशा कर्मी एवं अन्य कर्मी मानक पई आशा अंगनवाड़ी एवं हेल्पर रहउचंती हाँ तेणु से एक्जिस्टिंग स्कीम रो परिसर को बढ़ाई नुआ स्कीम को आनी ना ओडिशा परिप्रेक्षी देखले जदि आयुष्मान भारत नहीं आम विजु स्वास्थ्य कार्ड जो मैंने करते अलरेडी ओडिशा रे आमर इम्प्लीमेंट हो जाइतला जे समस्त ये स्कीम टा एप्लिकेबल हम तेणु ओडिशा रे ओटा अग्रणी ये अच्छी जे आमे अलरेडी आमे इम्प्लीमेंट कर देइछे किंतु एथिरे प्रश्न उठुछि जो मध्यवित्त आमे कहूचे जे केंद्र सरकार कहले जे पीएम आवास योजना को मध्यवित्त मानक पई एप्लिकेबल हम तेणु मध्यवित्त किए मध्यवित्त को परिवार सेटा को चिन्हट करवा सरकार परवर्ती पदक्षेप रोचे मे भी जुलाई मासरे सरकार तो घोषणा करेंगे परवर्ती जो नीति रही सरकार मध्य से नीति आणतु जे मध्यवित्त किए एवं वर्तमान टिकस लाभ हो आर्थिक व्यवस्था हो ए सब को देखिले मध्यवित्तर संज्ञा कौन हेबा उचित आपण मने करूचंती जहार रोजगार 7 लाख टंका रु कम बा 2.5 लाख टंका रु अधिक से माने मध्यवित्तर जिबे की जिते 7 लाख टंका थिबा लोक मानक आमे कहूने जे समान टैक्स दियंतु बोली कारण जहाँ इनकम टैक्स स्लैब रे अछि 7 लाख टंका वाला इनकम टैक्स देबे नाही तेणु ता ऊपर जो तमाम गरीब श्रेणी आम नवा ता ऊपर 7 लाख रु आपणकर विभिन्न प्रकार मतामत आसे थरे मध्य यही अर्थमंत्री कहते जे 8 लाख टंका जाए आम होचंदी मध्यवित्त एवं अंतर्जातीय स्तर रे मध्य गोटे अनुष्ठान अच्छी प्राइस बोली गोटे अनुष्ठान अच्छी से 30 लाख टंका जाए बर्तमान कहते मध्यवित्त तेणु मध्यवित्त परिवार रोजगार को लेकिन अनेक स्तर रे अनेक प्रकार सीमा निर्धारण है वर्तमान परिप्रेक्षी रे जदि आम जीडीपी कहूचे 7% ग्रोथ रेट को एवं आमर जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस करिगलानी एवं पंचम बृहत्तम अर्थनीति तेणु मध्यवित्तर जो संज्ञाटा निश्चित भाव परिवर्तन हम आमर मध्यवित्तता अति कम रे आमर 18 लाख टंका जो रोजगार करछंती सेही पर्यंत आमर मध्यवित्त जानतु 18 लाख ऊपर को जो माने धनी एवं सुपर क्लास जो माने अछंती से धनी जानतु तेणु से दृष्टि मध्यवित्तर डेफिनेशन टा सरकार आनुष्ठानिक स्तर रे घोषणा करी आनुष्ठानिक स्तर रे से निष्पत्ति नवार अछि सो दैट मध्यवित्त माने आउ नेग्लेक्टेड हेबे नाही एवं मध्यवित्त माने एई योजना सब घोषणा माने पाई परिबे एवं सर आम लगातार भाव में प्रतिक्रिया शुणुचे जे माने केन्द्र में अच्छी सरकार रे जे माने अच्छी से कहवा कथा 2047 सुधा एक विकसित भारतर परिकल्पना करा जायछि एवं से परिकल्पना को केमिति सफल करा जिवो से दिगरे ए बजेट सबू गोटे गोटे पदक्षेप बा गोटे गोटे माइलस्टोन हेबो कहिले भूल हेबो नाही एवं एई क्रम में जोगाजोग उपर सरकार यथेष्ट गुरुत्व देला भली मने होउछि से रेल सेवा हो बा विमान योजना हो याकू आपण केमिति देखुचंती जोगाजोगटा हम अभिवृद्धि को निश्चित भाव वृद्धि करबा आपण देखंतु जेतेबेले प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना जेतेबेले हेइतला सेतेबेले ता पूर्व आपण रास्ता कंडीशन देखिबे एबे गाँ को जीवे चौड़ा रास्ता हमर अछि एवं एबे आपण देखिबे भुवनेश्वर तो आरंभ करी जेते सहरांचल अछि एवं ग्रामांचल मध्य रास्तार क्वालिटी वृद्धि पाउछि एवं केतेटा एरिया को छाड़ी देले रास्तार केते चौड़ा रास्ता होछि एवं भलो रास्ता होछि ता छडा एयरपोर्ट रो अभिवृद्धि रहउछि नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स वृद्धि पाउछि ट्रेन रो संख्या मध्य वृद्धि पाउछि तेणु जोगाजोग रे सरकार जदि देश वृद्धि पाए ताला हमर अभिवृद्धि रे निश्चित भावे हबो बा जीडीपी रो अभिवृद्धि हबो बिल्कुल एवं ता सहित पर्यटन क्षेत्र पई मध्य अनेक पदक्षेप निया जायछि पर्यटन क्षेत्र पई जे ऋण नउचंती तांकु सुधमुक्त ऋण दिया जिवो अर्थात पर्यटन क्षेत्र को केमिति विकसित करा जिवो से दिगरे तो सरकार यत्नवान अछंती किंतु वास्तव में एई सब योजना केमिति कार्यकारी हबो ए होछि सबठु बड़ प्रश्न हाँ तर पर्यटन आम G20 जेहेतु इंडिया से मीटिंग टा हेइथिला तो G20 मीटिंग रे हमर पर्यटन क्षेत्र को हम ग्लोबल पॉपुलेशन को हम देखि दिया हेइथिला जे हमर पर्यटन स्थल कोन अछि एवं जानिथिले जे पर्यटन स्थल रे हमें भारत सरकार मध्य अनेक गुडी रोजगार करि परिबे रेवेन्यू मध्य आसी परिबो पर्यटन स्थल तो से दृष्टि अपन देखिबे जे पर्यटन स्थल मध्य पर्यटन को जदि वृद्धि करा जाए ताले भारत जीडीपी रे कंट्रीब्यूशन जीडीपी रो ग्रोथ रेट टा बढ़िबो एवं कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन ये सब जिनस गुडा मध्य हमर जीडीपी रो ग्रोथ रेट को वृद्धि करिवो तेणु सरकार आसंता समय रे
जीडीपी एवं जेहेतु एटा ग्रोथ ओरिएंटेड बजेट बोली कुआ जाए प्रथम बजेट अपन लक्ष्य करेंगे 2019 रु सरकार ए पर्यंत आपनकर सेही ग्रोथ रेट को अधिक मात्रा फोकस करिसंती एवं जते कॉर्पोरेट सेक्टर मान फाइन टैक्स टिके कम करिसंती सो दैट सेमानकर कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ विल इंक्रीज तेणु ग्रोथ को बा अभिवृद्धि को आपनकर फोकस दवा को हेले एवं जीडीपी को अधिक फोकस दवा को हेले आपनकर एई कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन को अधिका फोकस बिल्कुल अभिवृद्धि जदि आम हासिल करने चाहूचे ताहले आपण जेमिति कहिले पर्यटन एवं जोगाजोग ए दुईटी क्षेत्र उपरे गुरुत्व देवा पड़िबो एवं ए दुईटी क्षेत्र में जदि आम सफलता पाए ताहले अभिवृद्धि को केही रोकी पारिबे नाही एवं देशर अभिवृद्धि हार मध्य आहुरी बढ़ी चलिबो। अन्यपटे दर्शक बंधु आम देखुथिले लगातार भाव में बजेट जेतेबेले उपस्थापन होउथिला से 2020 हो 21 हो 22 हो 23 हो एही समय स्वास्थ्य भित्तिभूमि एवं स्वास्थ्य क्षेत्र उपरे सरकार यथेष्ट गुरुत्व दे आसुथिले किंतु चलित थर आम देखुचे स्वास्थ्य क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्र उपरे मध्य यथेष्ट गुरुत्व दिया जायछि। श्रीयुक्त मिश्र आशा करा जाउथिला कि स्वास्थ्य क्षेत्र उपरे चिराचरित जेमिति विगत वर्ष मानकरे सरकार फोकस करि आसुथिले सेमिति फोकस करिवे किंतु किछिटा आमे व्यतिक्रम देखुचे। स्वास्थ्य क्षेत्र आपण देखिबे से अंतर्गत बजेट जेतु आपण एक्जेक्टली केते पैसा ए वर्ष अलोकेशन करा गला हेल्थ मिनिस्ट्री पई गत थरक 92,000 कोटी टंका करा हेतला एंटायर बजेट रो आपण देखिबे गत थरक 45 लाख कोटी टंका बजेट थिला 2.3% अलोकेशन करा हेतला एंटायर बजेट रो 2019 जेते अलोकेशन करथले ताटू कम अलोकेशन एथरो माने 2023-24 थिला 2024-25 आपनकर बजेट पई किछि सेमती जेहेतु बजेट केते अलोकेशन करिवे से कथा सरकार कहि नांती तने एक्जेक्टली केते अलोकेशन हेछि सरकार आमे ताथुरु जानिबा कष्टकर हो किंतु इंडिकेट करछन्ती सरकार सूचित करछन्ती जे आयुष्मान भारत को हमर तार परिसर को बढ़ाइछन्ती नुवा नुवा बेनिफिशियरी ऐड करिवार ताको सुयोग दैछन्ती एवं सूचित करैछन्ती हमर एवं मध्य कहिछन्ती नुवा मेडिकल कॉलेजेस खोला जिवो एई केतरा कथा से कहिछन्ती खाली स्पीच माध्यम रे किंतु एक्जेक्टली फाइनेंशियल एलोकेशंस केते हबो प्रत्येक हेड वाइज मिनिस्टर केते केते एलोकेशन हबो सेटा जुलाई मास रे सरकार क्लियर करिवे। बिल्कुल ए तो होची अंतरीण बजेट एवं जेतेबेले पूर्णांग बजेट आसीबो बा नुआ सरकार आसी पुनी थरे बजेट प्रस्तुत करिवो एवं पूर्णांग बजेट आसीबो से समय स्पष्ट हेबो केउ क्षेत्र पई केते व्यवहारात करा जायछि किंतु आमे देखुचे चलित बजेट किछि भिन्न रहिछि कहिले भूल हेबो नै विगत वर्ष मानकरे कोविड रो प्रभाव रहितिला कोविड सहित आमे जुझुथिले तेनु स्वास्थ्य भित्तिभूमि एवं स्वास्थ्य क्षेत्र उपरे सरकार यथेष्ट गुरुत्व देई आसुथिले किंतु चलित थर मने करा जाय पारे कि केवल स्वास्थ्य क्षेत्र नुहे स्वास्थ्य बाद मध्य एभली अनेक क्षेत्र अछि जा उपरे सरकार फोकस करि आसिचंती एवं गुरुत्व देई आसिचंती से पर्यटन हेउ बा जोगाजोग क्षेत्र हेउ। हां तेनु अपन जो देखिबे जे तीनोटी क्षेत्र को आपनकर बेसी बजेट स्पीच जदि आपण डिटेल रीड करिवे तीनोटी क्षेत्र को बेसी फोकस करा आइछि गोटे होछि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जोटा कि जोगाजोग क्षेत्र हमर कहबा द्वितीय रे हमर से पर्यटन क्षेत्र को हमर अधिक फोकस दिया आइछि एवं ग्रीन एनर्जी आपन सोलर पैनल बसिवा लगी केमते हाउस होल्ड लेवल ले 1 कोटी सोलर पैनल केमते यूज करि परिबा आगु को मध्ये टार्गेट करा होछि तेनु ग्रीन एनर्जी की अधिक फोकस दिया आइछि सोशल सेक्टर को जदि आपण आसीबे ताले हेल्थ ऊपर आपनकर किछि हुआ जाइछि जे आयुष्मान भारत को नै गिरी एवं नुवा मेडिकल कॉलेजेस को खोलिवा नै गिरी एवं पर्यटन क्षेत्र मध्ये आ गोटे क्षेत्र जोटा कि ताकू यथेष्ट मात्रा जोटा जदि बाटा इकोनॉमिक सेक्टर तेणु पर्यटन क्षेत्र कुआई तेणु यही सब एवं स्वतंत्र भावे महिला मानक कुआई अनेक कथा जोटा कि लाखपति दीदी से केते आसी पर्यंत सरकार आगु केते टार्गेट करछन्ती से बाबद तेणु महिला एवं यही सब क्षेत्र को महिला बिल्कुल एवं दर्शक बंधु आम लगातार भाव में विशेषज्ञ प्रतिक्रिया आपण मान निकट में पहुँचाऊँ कारण चर्चा आरंभ होता समस्त आशा बढ़ुला किंतु विशेषज्ञ लगातार भाव में प्रथम मतामत दे आसुले ये हूँ अंतरीण बजेट तेणु ताकू नहीं अनेक मात्रा उत्साहित होबार कौन आवश्यकता ना बा आशा अपेक्षा यह बजेट विशेष भाव में रखा कथा नुहे कारण जितेबाला निर्वाचन हेब और पुणी थे नुआ सरकार गठन हेब से समय जितेबाला पूर्णांग बजेट आसो सबकि रूपरेख स्पष्ट हेब अर्थात क्यों क्षेत्र प्रति केते व्यवहार करागला क्यों दिगरे सरकार केते खर्च करुछन्ति ताहा स्पष्ट हेबो।
जेतेबेले सुरक्षा देवाकू प्रशासन को निर्देश दिया जायछि। मस्जिद रे 4टी तोखाना बा अंडरग्राउंड घर थिबा बेले गोटिकर एबे भी जने पुजारी रहउछंती। वंशानुक्रमिक भाव में सेठा रहुथिबा पुजारी परिवार पूजार्चना कराइबे बोली दाबी करछंती। राहुल गांधी को कार उपरे आक्रमण। पश्चिमबंग मालदा जिले में राहुल को कार उपरे होईछि आक्रमण। तांको कार उपर को ढेला पत्थर माड़ होईछि। एथिरे कार काच भांगी जाइछि। तेबे राहुल गांधी किछि क्षति होई नथिबा जणा पड़िछि। गत 14 तारिख मणिपुर रे राहुल को नेतृत्व में आरंभ होईछि कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मणिपुर, नागालैंड, आसाम एवं पश्चिमबंग पर बिहार रु बुधवार आरंभ होइतिला। होई गलानी एमिति जदि सुना दर बढ़ी चलिथिबो ताको बेसी किछि देई परिबिन। तमे किछि उपाय भाबिछ? रेगुलेटेड कमोडिटी एक्सचेंज रे गोटे छोटो प्रीमियम देकी सुनार कॉल ऑप्शन किनिबा उपरे सुनार दाम आज ही निर्धारित हेइ जिवो। आउ जदि दाम बढ़िला तुमको आजिर दाम रे ही सुना मिली जिवो। आउ जदि दाम कमिला तमे कमिथिबा दाम उपरे सुना बाजार रु किनि परिबो। बा कटिहार जिल्लारू यात्रा आरंभ होई पश्चिमबंगर पुनः प्रवेश करी झारखंड अभिमुखे जीव। बुधवार सकाळे मालदारे भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश करबा बेले एभली आक्रमण होईछि। कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को टक्कर देवाकू मालदारे निजे पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जनसंयोग रैली करथिले। राहुल को गाड़ी उपरे पश्चिमबंग मालदारे नुहे बरं बिहार कटिहार रे आक्रमण होइतबा कहिसंती से। एही आक्रमण को तीव्र निंदा करछंती से। आसन बुझामणा को नहीं कांग्रेस और टीएमसी मध्य अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि होगा परे मालदा जिले में राहुल को गाड़ी उपरे एभली आक्रमण होईछि। पूर्वरु आसाम रे मध्य राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एकाधिक थर टार्गेट करा जायतिला। पोस्टर और ब्यानर चिरी फोपाड़ी देइथिले किछि दुर्बृत्त। राहुल को सह थिबा दलर वरिष्ठ नेता जयराम रमेश को गाड़ी को मध्य दुर्बृत्त माने टार्गेट करथिले। पाकिस्तान पूर्वतन प्रधानमंत्री तथा पीटीआई मुख्य इमरान खान को पुणी जेल। डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट्स मामला रे पाकिस्तान स्वतंत्र कोर्ट इमरान खान और पूर्वतन वैदेशिक मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी को मंगलवार 10 वर्ष लेखाएं सजा शुणाइथिले। बुधवार इस्लामाबाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इमरान खान को 14 वर्ष जेल दंड शुणाइछंती। इमरान को सह तांको स्त्री बुशरा बीबी को मध्य समान सजा होईछि। प्रधानमंत्री थिबा बेले इमरान ब्रेक पर स्वागत। आगत हो सारी बजेट और बजेट मुख्यांश बा हेडलाइंस कौन सब रही आम से संपर्क में आपको सूचना देवाई चेष्टा करुचु। जमी टिकस स्लैब कौन परिवर्तन होना बाद किसी नुआ पदक्षेप नि अर्थात लोक खुशी कला भली किसी खबर आसी। क्रम पीएम आवास योजना रे 3 कोटी लोक लाभवान हेबे बा 3 कोटी परिवार लाभवान हेबे। ता सहित मिडिल क्लास को पई आवास योजना आरंभ हेबो। अर्थात जे माने मध्यवित्त परिवार रो लोक अछंती जो माने स्वप्न देखि थांती कि घर खंडिए केमिति पाइबे बा घर खंडिए केमिति निर्माण करिवे, जो मानकर चिंता बढ़ी बढ़ी चालुथिला। कारण आमे देखुचे जो माने तळ बा गरीब श्रेणी रो लोक अछंती बा बीपीएल रे जे माने आसुचंती से माननकु सरकारी योजना रे घर खंडिए जोगाई दिया जाउथिला। किंतु जे माने मध्यवित्त अछंती बा स्वल्प रोजगार अछि बा जो माने गरीब श्रेणी नुहंती कि धनी श्रेणी नुहंती से चिंता बढ़ुला कि वास्तव में जीवन काल भितर से घर खंडिए निर्माण करें कि आ संभवतः कहुपे केंद्र सरकार बोधे से दुख बा से कथा शुणी कहले भूल हेब ना। कारण पीएम ग्राम्य आवास योजना एणिकी मध्यवित्त परिवार सामिल हेबे एवं मध्यवित्त परिवार जो स्वप्न रोला आशा अपेक्षा रोला यही योजना माध्यम संभवतः स्वप्न पूरण हो पारे। कारण मिडिल क्लास को पई आवास योजना आरंभ करेंगे केंद्र सरकार। पीएम ग्राम्य योजना रे 2 कोटी घर दियाजिबो। से भली शिक्षा क्षेत्र पई कोन सब पदक्षेप निया जायछि आसंतु ता उपरे नजर पकाइबा। 13टी एम्स प्रतिष्ठा करा जायछि बा आमे देखुचे लगातार भाव में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में केमिति सरकार आगो को बढ़िबे से दिगरे चेष्टा करुचंती एवं जातीय शिक्षा नीति वर्तमान कार्यकारी हो सारी। 10 वर्ष रे खोला जायछि 390टी विश्वविद्यालय। अर्थात आपण एथिरु अनुमान करि पारुथिबे कि शिक्षा क्षेत्र को आगो को नबा पई सरकार केते जोर देई आसुचंती। से भली 13टी एम्स प्रतिष्ठा हो सारी। जातीय शिक्षा नीति रे अनेक परिवर्तन आमे देखुचे बा अनेक जिनिस नुआ किछि कार्यकारी होउछि। तेणु शिक्षा क्षेत्र बा शिक्षा विभाग सब सरकार फोकस रही है। कह जाए जिते शिक्षा क्षेत्र अग्रगति कर देश में साक्षरता हार बढ़ देश में विकास मात्रा विकास धारा आहरी बढ़। तेणु शिक्षा क्षेत्र प्रति सरकार यथेष्ट गुरुत्व दि 7टी आईआईटी 16टी ट्रिपल आईटी एभली प्रतिष्ठित अनुष्ठान मान खोल जाद्वारा देशर शिक्षा क्षेत्र आहरी आग को बढ़ी पारी।
से रेल विभाग सबुठारु एक गुरुत्वपूर्ण विभाग बा गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र पूर्व आम देखुले रेलवाई बजेट स्वतंत्र आसूला किंतु विगत किछि वर्ष भितर परिवर्तन होईछि एवं साधारण बजेट सहित ही रेल बजेट आसूची एवं चलित थर तो थिला अंतरीण बजेट एवं ता बाद भी रेल क्षेत्रु ओडिशावासी एवं देशवासी बहुत किछि आशा रखिथिले एवं गोटे प्रकार सरकार निराश करि नाहंती कहिले भूल हबो नाही। वंदे भारत एक्सप्रेस केमिति संख्या आहुरी बढ़िबो बगी केमिति अपग्रेड हबो ता उपरे सरकार गुरुत्व दैछंती कारण आमे देखुचे वंदे भारत योजना रे वर्तमान ट्रेन चलाचल आरंभ होईछि जहा द्वारा लोकंकर समय बंचुची अर्थात गोटे जगार अन्य जगह को जीवाई जी समय लगुला से ह्रास घटी। अंपटे आउ एक गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र होउछि कृषि एवं कृषक। कृषि एवं कृषकों को बाद दे देशर विकास परिकल्पना केबे मध्य संभव नुहे कारण देशर अभिवृद्धि निर्भर करे कृषि एवं कृषि क्षेत्र उपरे। तेणु कृषि एवं कृषि क्षेत्र उपरे से राज्य हुंतु बा केंद्र सरकार हुंतु सर्वदा गुरुत्व दे आसिचंती एवं चलित थर अंतरीण बजेट रे मध्य आमे देखिले कृषि क्षेत्र उपरे विभिन्न योजना कार्यकारी करा जायछि जहा बजेट रे प्रतिफलित होईछि। 11.8 कोटी चाषी क्षमा करेंगे 1.8 कोटी चाषी डिजिटाल रे कार्य करेंगे से 4 कोटी चाषी फसल बीमा द्वारा उपकृत हेबे। 11.8 कोटी चाषी पीएम किसान योजना रे शामिल होइछन्ति एवं कृषकों को आय केमिति बढ़िबो बा आय केमिति वृद्धि पाइबो से दिगरे सरकार गुरुत्व दे आसुछन्ति। मो सहयोगी विक्रम जोड़ुचंती न्यूज रूम रु। विक्रम चलित बजेट को आपण केमिति देखुचंती मुख्यांश संपर्क में मु दर्शकों को अवगत करूथिली आपनक पाखरे आउ कोन सब अपडेट रहिछि साधारण लोकंक पई केते दूर सुहाइला भली बजेट टे होइछि। देखो अर्थ मंत्रालय द्वारा जो बजेट संपर्कित जो पुस्तिका प्रकाश पाई आप देखुन तार की फीचर मो हाथ अच्छी मुख्यांशर जो जो कथा उपरे गुरुत्व दि जाइछि एवं प्रथम पृष्ठार जहाँ लिखा जाइछि जे विकसित भारत 2047 सुधा। तेणु ये जो 22 वर्ष जो आउ टार्गेट रहिला ये 22 वर्ष टार्गेट को मीट करने गोटे प्रकार जदि आमे कहिबा ताले जो सबका साथ सबका विकास एवं सबका प्रयास जो रही या माध्यम रे आपण 2047 सुधा विकसित भारतर जो स्वप्न अच्छी वास्तवतार परिणत करने ये जो वर्तमान सुधा माने जाली आज जहाँ घोषणा कर ये गोटे पूर्णांग बजेट नहेले मध्य किंतु गोटे बजेट पाई आगामी दिन में जो मोदी सरकार तृतीय पाली हो जहाँ प्रधानमंत्री काली सूचना देते जे निश्चित भाव में आम आगामी बजेट उपस्थापन करूँ। तेणु तापाई ये गोटे बेस सेट करुच्ची गोटे प्लाटफर्म सेट करुच्ची खाली सेतिक नुहे यही जो लक्ष्य साधन पाई जहाँ जहाँ किसी पड़ो तार परवर्ती पृष्ठागुड़िक डिटेल्स देइछंती एवं आपण देखुछंती जे जो फोकस एरिया रही ये फोकस एरिया रे प्रथम रही पीपुल सेंट्रिक इनक्लूसिव डेवलपमेंट अर्थात लोकंकर जो स्वार्थ को विशेष भाव में गुरुत्व दी पीपुल सेंट्रिक इनक्लूसिव डेवलपमेंट एवं द्वितीय कथा आपण जदि कहिबे ताहले आउ गोटे कथा आप देखुं द्वितीय पृष्ठारे जोटा डायरेक्ट माने टैक्स जो डायरेक्ट सेविंग होची डायरेक्ट जो आमर कैश जाउची अकाउंट को सब विभिन्न स्कीम रे से 2.7 लाख रो सेविंग होती। तेणु ये जो अर्थ रही ये अर्थ कौन हम 2.7 लाख रो जो सेविंग रही ये सेविंग किसी छोट नुहे ये अर्थर विनियोग विभिन्न प्रकार उद्यम कर खास करके आपन जदि कहिबे जो कैपेक्स को बढ़ा जाइछि भित्तिभूमि निर्माण क्षेत्र में जो कथा को बढ़ा जाइछि तार तार टिके लेखा जोखा मध्य दिया जाइछि मु आपन को आउ टिके देखिया पई चाहिबी आपन देखंतु जो कैपेक्स वृद्धि होइछि ये प्राय 11 लाख कोटी रु अधिक बढ़ा जाइछि माने सेथिरे ये होछि गोटे बड़ उपलब्धि। द्वितीय कथा जदि आपन कहिबे जे आय व्ययर जो हिसाब रही ये आय व्ययर ये हूँ पूरा हिसाब आप देखु एवं एथिरे जहाँ आमर को सूचना जहाँ अच्छी बोरोइंग सहित इनकम टैक्स एवं अलग जीएसटी ये हूँ भित्ति तेज मोटामोटी जहाँ ए जीएसट बाहर से जीएसटी रु मुख्यतः जदि कहबा आमे किछि की फीचर्स जहाँ को जीएसटी भाव में ग्रहण करछि प्रथम कथा है आयकर जो मैंने दौरान से लगी स्लाब रे कौन परिवर्तन करा जाय नहीं या पछर थिबा तत्वटी बुझा कहले गत वर्ष रिसेंटली माने सरकार बढ़ई आयकर सीमा ता छड़ा वर्तमान स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा जाऊ बोली मध्य अनेक दाबी करछंती हुए तो आगामी जो बजेट पूर्णांग बजेट आसीबो सेतिरे स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा जाई पारे। तेणु आयकर को लेकर विशेष मध्य आर्थिक जगतर आशा मध्य रथिला। द्वितीय कथा जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को पुश करिवो एवं हाउसिंग को पुश करिवो साधारण लोकों को भी बेनिफिट दबो से निष्पत्ति होउची जे पीएम आवास अधिक 2 कोटी मिलिबो अर्थात अधिक 2 कोटी घर पक्का घर हम साधारण लोकंकर घर बनब यहीटा हेले आप देखो गोटे घर जो बनुची सीमेंट सेक्टर हो लुहा सेक्टर हो बा लेबर सेक्टर हो एमती अनेक प्रकार विभिन्न क्षेत्र में साइमल्टेनियसली प्रगति हम तेणु ता छड़ा लोकों जीवन धारण मान में उन्नति हम तेणुक ये द्वितीय निष्पत्ति। तृतीय निष्पत्ति हूँ जो 3टा नुआ रेल कॉरिडोर हम
या फल कौन हम ना जो माल गाड़ी कंजेसन होता सब बेले ट्राफिक आग दि जाऊला क्या ना जो मैंने पैसेंजर ट्रेन को आग फैसिलिटी दि जाऊला किंतु माल गाड़ी गुड़िक पड़ी रोला फल आमर खर्च अधिक बढ़ुला डिले सकाशे से जो 3टा नुआ कॉरिडोर हम ये प्राय 10 वर्ष हासिल कर लक्ष्य रखा छड़ा कृषि क्षेत्र में आप कहे पूर्व आम नानो यूरिया डेवलपमेंट देखीचे एबे से नानो यूरिया जो प्रयोग को अधिक व्यापक किंतु नानो डीएपी ता सहित तेणु यूरिया और डीएपी तेणु उत्पादन को अधिक बढ़ावा लगे उद्यम कराउछि किंतु साइमल्टेनियसली जैविक कृषि को प्रोत्साहन देवाई उद्यम रही ये पंचम चतुर्थ कथा पंचम कथा हूँ वर्तमान सुधा सारा देश में जेतिकी एयरपोर्ट अच्छी अर्थात पाखापाखि 150 एयरपोर्ट अच्छी आगामी 10 वर्ष भितर आउ 2 गुणा करने अर्थात आउ 149टा एयरपोर्ट निर्माण करने लक्ष्य रखा तेणु आप चिंता करूँ जो उड़ान योजन छोट छोट एयरपोर्ट गुड़ खोलुचे आम ओडिशा कथा जब आम कह आम केवल भुवनेश्वर एयरपोर्ट कथा जानी किंतु गत वर्षे 2 वर्ष भितर आम देखीचे झारसुगुड़ा एयरपोर्ट देखीचे आम देखीचे मालकानगिरी एयरपोर्ट देखीचे आम कोरापुट एयरपोर्ट देखी तेणु उपांत अंचल जो एयरपोर्ट निर्माण या फल कौन हम ना कम्युनिकेशन सुविधा हम तापर जदि आम कहवा ताहले जो वंदे भारत एक्सप्रेस यात्री सेवाई रेलर यात्री सेवाई पाखापाखि 40,000 रु अधिक बगी को वंदे भारत एक्सप्रेस रे कन्वर्ट करा जिवो तेणु आपण चिंता करंतु जे लोकंकर जो एयरपोर्ट केवल नुहे रेलवे उपरे मध्य फोकस रहिबो जोठी यात्री सेवा उन्नत मानर मिलिबो एवं या परे जदि आपण देखिबे मेट्रो वर्तमान मेट्रो सहर गुड़िकर बड़ बड़ सहर गुड़िकर जीवा आसबार ट्राफिक कंजेशन जो विपुल परिमाण अर्थ नष्ट होची तेल पड़ुची एवं आर्थिक क्षति पहुँचाऊँगी तेणु से मेट्रो उपरे गुरुत्व दि जाऊँगी जहाँफल कार्बन एमिशन कमिबो एवं एथिरे छोट सहर गुड़ी को फोकस कराई केवल बड़ सहर नुहे छोट सहर में मेट्रो ट्रेन प्रकल्प कर जानते भुवनेश्वर जमी मेट्रो होती आहरी छोट सहर गुड़िक मेट्रो स्थापन मेट्रो माने मेट्रो चलाचल को व्यवस्था कर भाव में आप कहे आ गए स्वास्थ्य सेवार 2टी बड़ डिसीजन होती गोटे हूँ 9 ରୁ 14 वर्ष बयसर बालिका मानी जो सर्वाइकल कैंसर रही ये गोटे बड़ चिंतार विषय थिला तेणु बालिका मानकर स्वास्थ्य दिगरे विशेष भाव ध्यान देवाई से टीकाकरण कर सर्वाइकल कैंसर निरोधी टीका एवं एक कथा एवं गवर्नमेंट तरफ करा मास स्केल कर चिंता करूँ गोटे केते बड़ बेनिफिट हम आम महिला जगत मातृशक्ति गोटे केड़े बड़ अवदान हम एवं द्वितीय कथा हूँ प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो रही डीएचएच रही से डीएचएच गुड़ी को मेडिकल कॉलेज रूपांतर करने गोटे कमिटी गढ़ा हम जे कि केमिति कोटा तार फिजिबिलिटी सब जोगेब आम ओडिशा रे जदि 30टा जिला कथा आम कहवा पाखापाखि गोटे 50% जिलार हेडक्वार्टर आम मेडिकल कॉलेज भाया फैसिलिटी आसीगला आउ जो रही आप भावतु जदि सबु जिलार जो रोगी रही से निज बिल्कुल स्वास्थ्य क्षेत्र और स्वास्थ्य भित्तिभूमि को नहीं लंबा समय धरी चर्चा लगी रही पूर्वर कहूली कि कोविड समय आम केमी प्रतिकूल परिस्थितिर सामना करते कोविड जिते आसला वास्तव में आम जानिले आम स्वास्थ्य भित्तिभूमि कौन ताहा टेस्ट हो गला ता परवर्ती समय आम देखिले जिते बजेट आसला स्वास्थ्य क्षेत्र और स्वास्थ्य भित्तिभूमि सर्वदा फोकस रे रहिला केंद्र सरकार व्ययबराद से क्षेत्र बढ़ई चलिले तेणु स्वास्थ्य क्षेत्र उपर सर्वदा सरकार फोकस रही चलित थर या गुरुत्व देइछंती कहले भूल हम ना विक्रम यह बाद आवास योजना को नहीं अनेक चर्चा कारण मध्यवित्त परिवार जे माने घर खंडे स्वप्न देखुथिले सरकार पदक्षेप निष्पत्ति किसिटा सुहाई पारे सेमानकर स्वप्न पूरण होई पारे निश्चित भाव में आप देखु जो पीएम आवास योजना आपड़ जब बर्तमान गाँ गहली को जीवे देखिए साधारण व्यक्ति परिवार केवल निम्न वर्गर नुहति मध्यमित परिवार घर खंडे करवा खास कर आप देखु भारतर अधिकांश जो राज्य रही प्राकृतिक दुर्विपाक प्रवण माने राज्य गुड़िक ओडिशा कथा कहतु पश्चिमबंग कहतु आंध्र कहतु तमिलनाडु कहतु कर्णाटक कहतु केरल कहतु माने कोस्टाल डिस्ट्रिक्ट सब रहा तेणु ए सबुरे बन्या बात्या सबुबले आम जुझुचे इवन बन्या कथा जब आम कह मध्यप्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिल्ली भली राज्य में बन्यार प्रकोप आम देखीचे किंतु यही जो स्थान मानक जितेबाला गोटे पक्का घर रहाती भाव में लोकंर जो आर्थिक सामाजिक एवं जीवन धारण मान में बहुत उन्नति आसो से पीएम आवास योजना गोटे बड़ योजना और जो साधारण वर्गर परिवार को जितेबाला पीएम आवास जोगे दि तार जो लिमिट रही बर्तमान पाखापाखि आउ 2 कोटी पीएम आवास जोगे दिज्व आप चिंता करूँ पूर्व जो रही सी पाखापाखि 2 ରୁ 3 कोटी रही आहरी 2 कोटी माने भावतु 5 कोटी परिवार अर्थ बाय 20 ରୁ 25 कोटी लोकंकर जो घरे रहिबार जो व्यवस्था ताहा सरकार तरफ सहयोग करा
खाली से आपड़ जमी कहते जो बर्तमान कोविड परवर्ती स्थित में स्वास्थ्य जो भित्तिभूमि कथा कहते स्वास्थ्य हो शिक्षा हो ये दुईटा जाक दिगरे ग्राउंड लेवल एलिमेंटरी लेवल रे जो मैंने प्रमुख भूमिका नहीं था से आशा दीदी आ अंगनवाड़ी कर्मी तो आशा दीदी और अंगनवाड़ी दीदी या गोटे बड़ निष्पत्ति नहीं आहरी 2 कोटी लक्षपति दीदी सृष्टि करने उद्यम करा खाली से नुहे आशावाड़ी और अंगनवाड़ी को आयुष्मान भारत बिल्कुल बिल्कुल विक्रम एवं आशा अंगनवाड़ी और ता सहित हेल्पर जे माने अछंती से माने मध्य आयुष्मान भारत योजना रे शामिल हेबे अर्थात तांको मध्य परिवार रो स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र सरकार ग्यारंटी देबे बा जोगेई देबे। तबे दर्शक बंधु लगातार भाव में आम आपन को मुख्यांश सब कौन रही बजेट रो जहाँ आशा करा जायतिला से आशा अनुसार बजेट होईची ना नाही बा साधारण लोकंकर प्रतिक्रिया कौन आसुची राजनैतिक व्यक्ति विशेष मानकर प्रतिक्रिया कौन आसुची लगातार भाव में आम आपण मानक निकट में पहुंचाइबु किंतु वर्तमान एक छोट ब्रेक रो समय। बीबी 108 देशरू अनेक दामी उपहार पाइथिले से सब उपहार तोषाखाना रहिबा कथा किंतु इमरान से सबको तांको घरे रखिथिले बोली अभियोग होइछि। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ जमी दुर्नीति मामला रे हेमंत को गिरफ कला प्रवर्तन निर्देशालय प्राय 7 घंटारू अधिक समय धरी जेरा करिबा परे हेमंत को गिरफ करछि ईडी बारंबार सम्मान करिबा परे हाजर होई नथिले हेमंत 3 दिन निखोज रहिबा परे मंगलवार रांची रे पहुंचिथिले हेमंत सोरेन निज बासभवन रे विधायक और नेतांक सह करथिले आलोचना ईमेल जोगे बुधवार बासभवन रे ईडी अधिकारी को भेटिबा को जणाइथिले बुधवार सकाळू ईडी रो अधिकारी माने पहुंची तांको जेरा करथिले प्राय 7 घंटारू अधिक समय जेरा परे हेमंत को निज हेफाजत को नहीं ईडी। पेटीएम को बड़ झटका पेटीएम पेमेंट्स बैंक विरोध में आरबीआई रो बड़ कार्यानुष्ठान एणिकी आउ पेटीएम रे नुआ ग्राहक जोड़ी होई परिबेनी फेब्रुआरी 29 परठारू पेटीएम रे नेणदेण होई परिबनी बोली स्पष्ट कहिछि आरबीआई पेटीएम रे थिबा टंका सरीबा जाय व्यवहार होई परिबो 2022 मसीह रे आरबीआई यार आईटी सिस्टम रो विस्तृत सिस्टम ऑडिट करबा पई इनकम टैक्स ऑडिट फार्म नियुक्त करबा को निर्देश देइथिला सेही अनुसार आरबीआई एही पदक्षेप नैथिबा सूचना मिलिछि आरबीआई रो गाइडलाइन अनुसार आ पेटीएम रे टंका डिपोजिट करि परिबे नाही पेटीएम रो वॉलेट और फास्टैग मध्य काम करिबो नाही। ज्ञानवापी मस्जिद को नहीं बड़ राय हिंदू पक्षर बड़ विजय ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजार्चना हिंदू पक्ष को अनुमति देइछंती वाराणसी कोर्ट मस्जिद परिसर में शिवलिंग अच्छी एवं मंदिर भांगी एठारे मस्जिद निर्माण करा जाइथिबा प्रथमे अभियोग आनिथिले 4 जन स्थानीय महिला किछि दिन तले मस्जिद परिसर मंदिर किछि प्रतीक मिलथिला आउ एबे हिंदू पक्ष को मिली पूजार्चनार अनुमति कोर्ट को निर्देश रे मस्जिद परिसर में आबद्ध रहिथिबा व्यास तोखानार पूजार्चना अनुमति देइछंती कोर्ट एने 7 दिन मध्य सबु प्रकार बंदोबस्त करने को वाराणसी जिला प्रशासन एजुकेशन उपरे एजुकेशन ने जहाँ सब इम्प्लीमेंट हो सारी ताको कैरी फॉरवर्ड करा जमती कि पीएम श्री 14,500 स्कूल्स जोड़ा बना होता सेटा को आहरी कैरी फॉरवर्ड करा आहरी फोकस करा जमती कि कहुए कि मेडिकल कॉलेजेस बहुत सारा आहरी स्टूडेंट्स मानक वेलफेयर जो बनवाई ये कहुए कि जहाँ सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गुड़ा थिला ताकू कन्वर्ट करा मेडिकल कॉलेजेस रे जोटी कि बहुत द एक्टिविटीज कैन बी डन लाइक एजुकेशन भी रहिबो हेल्थ भी रहिबो तो सेटा गोटे जिनस बहुत भल होइछि जदि हम हेल्थ ऊपर देखिया हेल्थ रे हम पाखे सब जिनसर मेडिसिन इंडिया इज बेस्टली नोन फॉर मेडिसिन तो बहुत सारा मेडिसिन थाई कि भी गोटे अनसर्टेनिटी जमती कि कोविड रो एग्जांपल नियंतु से टाइम रे भी आमे बहुत हेल्पलेस हो जाइतलो माने बहुत सारा पॉपुलेशन हमर सेठी रिड्यूस हो जाइतले एटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी रहबो एथरे जोथरे कि बहुत सारा सेक्टर्स ऊपर फोकस कराई जमती कि एबे सर्वाइकल कैंसर ऊपर गर्ल्स मानक एज जमती 9 रू 14 एज को ऊपर तांको फ्री वैक्सीनेशन दिया हबो देन आउरी जमती बनाई कि बहुत सारा स्कीम्स गुड़ा थिला एजुकेशन माने हेल्थ ऊपर एजुकेशन ऊपर ताको दृष्टि देबार थिला सेगुडा दिया है तांको गोटे अम्ब्रेला तल गणाई माने गोटे स्कीम रो अंडर गणाई बहुत सारा थिला लोक माने बहुत सारा जिनस करले को स्कीम रे कोन अछि तांको कंफ्यूजन होछि तो जेतुटा गोटे अंडर गणाई तांको पय सुविधा कि जहाँ भी से माने चाहंती सेटा तांको मिल जिवो
मोटामोटी भाव में कहीपर हेल्थ एजुकेशन उपर गोटे पॉजिटिव साइन रही आम जा इंफ्रास्ट्रक्चर उपर साधारण भाव वर्तमान समय गोटे डेवलपिंग कंट्री भाव में जो भारत आगे जाऊँगी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेस गुरुत्वपूर्ण बहन करे और जो मैंने युवपीढ़ी रही छात्र छात्री मैंने से केमती देखुं या कारण आप जानते इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बेस आखिरे आपन को जोटा देखा जीवो डेवलपमेंट से होची इंफ्रास्ट्रक्चर आउ को जिनस देखा जाऊ न जाऊ आपन जदी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक अछि ताल निश्चित भाबरे जना पड़े जे ग्रो हेची तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को विशेष भाबरे केते गुरुत्व दिया छी आपन मन को भितर मैडम इंफ्रास्ट्रक्चर को केते गुरुत्व दिया छी कारण आपन बिजनेस रो स्टूडेंट आपन जानि थिबे कॉमन वर्ड रे जदी बुझाया पई चाहिबा साधारण लोक को केमती देखुचंदी याको देखु भित्तिभूमि क्षेत्र होउची एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र जो थे कि विकास हवा निहाती आवश्यक अटे तेणु आमर जो फाइनेंस मिनिस्टर अच्छा निर्मला सीतारमण सी जो सबू पॉलिसीज गुड़ाक इंट्रोड्यूस कर विशेषकर तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भित्तिभूमि क्षेत्र में एत कि फोकस करा जायनी बट जेहेतु यहाँ गोटे इंटरिम बजेट रोचे तेणु आम एक्सपेक्ट करुचु जे लाइक यही जो गोटे मासर गैप भितर जी भी जिनस को आम इंट्रोड्यूस करा बहुत सफलता रूपे पूरण करा जाय परिबो एवं आ गोटे गुरुत्वपूर्ण जिनस होउची जे मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की 40,000 आधुनिक बोगियां बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है। इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15 से 20 हजार प्रति वर्ष की आय भी होगी और ये हर परिवार को होगी। साथियों, आज जिस इनकम टैक्स रेमिशन स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजट में
किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपण शुणुले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजेट को लेकिन कहते हूँ लोकाभिमुखी बजेट बजेट में जिते महिला को गुरुत्व दी जाए चाषी मान आय बहुगुणित होता सहित शिक्षा स्वास्थ्य भित्तिभूमि सबू क्षेत्र को फोकस कर लोकाभिमुखी बजेट जो 2024-25 आर्थिक वर्षर बजेट उपस्थापित होती समय अर्थमंत्री बजेट लक्ष्य शुणुवे कौन कहते कि सरकार को जो लक्ष्य रही 5 वर्ष में आउ 2 कोटी घर निर्माण हो मासक 300 यूनिट बिजुली मागणा दिया 1 कोटी घर छात उपर लगे सोलार पैनेल ता सहित समस्त को पक्का घर जोगाइबा लक्ष्य सरकार रही सरकार लक्ष्य जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो 10टी बड़ कथा जो बजेट कथा आसूची जो संतुलन बजेट 10टी हेडलाइंस आपण सामने रखुचु जो सरकार को जो लक्ष्य रही लोकाभिमुखी बजेट कहते निर्वाचनी बजेट 2047 सुधा विकसित भारत लक्ष्य जहाँ हूँ बजेट रे प्रतिफलित होची 2047 सुधा 1 कोटी घर को रूफ टॉप सोलार व्यवस्था करा बोली बजेट रे ये बड़ घोषणा करा जायछि। यहा द्वारा प्रति घर को प्रति मासरे 300 यूनिट बिजुली मिल परिबो। ता सहित पीएम आवास योजना रे 3 कोटी लोक लाभवान होई परिबे बोली बजेट रे एक कथा बड़ घोषणा करा जायछि। सेही परि देखिबा कि पीएम ग्राम्य गृह योजना रे 2 कोटी घर तैयारी करा जिवो जहां बजेट रे कुआ जायछि एवं मिडिल क्लास फैमिली को पई कि जो माने मध्यवित्त वर्ग आवास योजना आरंभ करा जिवो जहां द्वारा मध्यवित्त माने उपकृत हेबे। ता सहित अंगनवाड़ी केंद्र को अपग्रेड करा जिवो जो बड़ घोषणा करा जायछि अंगनवाड़ी केंद्र को अपग्रेड करा जिवो आशा कर्मी को आयुष्मान भारत रे शामिल करा जिवो जहां द्वारा कि आशा कर्मी माने उपकृत हेबे। एवं बड़ कथा कि 9 रु 14 वर्षर झियों को टीकाकरण करा जिवो ये होची गोटे बड़ घोषणा झियों को सर्वाइवल जो कैंसर निरोधी टीका दिया जिवो। तो ये बड़ घोषणा करा जायछि एवं 1 कोटी महिला लक्षपति दीदी होई परिछंती जेतले महिला आत्मनिर्भरशील कथा आसूची एबे 3 कोटी लक्षपति दीदी पाई लक्ष्य रखा जायछि महिला मानक आत्मनिर्भरशील उपरे सेमाने किबळी भाबरे आत्मनिर्भरशील होई परिबे ता परे फोकस कर जायछि एथर बजेट अर्थात मोटामोटी महिला उपरे फोकस कर जायछि। वंदे भारत योजना रे 40,000 बगी अपग्रेड हेबो जहां बजेट रे एक बड़ घोषणा कर जायछि आगामी 10 वर्ष रे देखिबा कि विमान बंदर संख्या 149 रे पहुंचबो आगामी 10 वर्ष रे विमान बंदर संख्या 2 गुणा हेबो अर्थात देखिबा कि ता विमान बंदर उपरे फोकस करा जायछि। उड़ान योजना रे 517 नुआ रूट संयोग करा जिवो या एक बड़ घोषणा एवं छोट छोट शहर रे मेट्रो स्थापन करा जिवो। जेतबे आज बजेट रो हेडलाइंस उपरे हमें नजर पकाउचे या पर्यटन विकास पई फोकस करा जायछि पर्यटन विकास पाई सुधमुक्त ऋण दिया लाक्षाद्वीप को पर्यटक भाव में विकसित कर लाक्षाद्वीप देखु फोकस कर सरकार फोकस कर पर्यटन क्षेत्र उपरे। तो वर्तमान समय देखिए कि बजेट जो 10टी बड़ कथा तापरे नजर पकाउले आज बजेट को लेकिन आलोचना करबा मुख्यतः जो फोकस रही शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन इंफ्रास्ट्रक्चर आरंभ करके आपण देखंतु महिला फोकस करा जायछि। तो निश्चित भाव में आलोचना करने को मोस्त कांग्रेस मुखपात्र प्रशांत शतपथी अच्छा बीजेडी मुखपात्र मिहिर राय अच्छा आप उभय को स्वागत करुच्ची आलोचना को न्यूज रूम मो सहयोगी विक्रम अच्छा विक्रम प्रथम टी आपण पाक आसवा चाहिए जिते बजेट देखिए कि मुख्य हेडलाइंस कौन आम दर्शकों सामने रखुलू यार भितर आप पूरापूरी मोटामोटी बजेट को लेकिन केवल एनालिसिस करेंगे मुख्यतः आम कहीपर कि सरकार को जो लक्ष्य रही गोटे जो कथा कहला ये गोटे निर्वाचनी बजेट हेबो। तो ये देखिए कि सरकार गोटे विकास पर फोकस कर इंफ्रास्ट्रक्चर आरंभ करके महिला कथा आप देखु शिक्षा स्वास्थ्य मोटामोटी फोकस रही है दिगरे।
देखो ये जो बजेट रही बजेटा पूर्णांग बजेट नुहे तेणुक यहाँ गोटे माने अंतरीण बजेट बा मध्यवर्तीकालीन बजेट ए बजेट रे जदिओ बहुत किसी आशा नथिला किंतु गोटे कथा जहाँ कर आगामी बजेट किभली हम तार गोटे प्लाटफर्म सेट कर गोटे भित्ति स्थापन कर जो आम अनुमान कर आगामी बजेट किभली हम कारण आपड़ जानी जे गतकाली जितेबाला पार्लियामेंट सेसन बजेट सेसन आरंभ होला पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जो गणमाध्यम को संबोधन करते से गोटे कथा स्ट्रेस देते आगामी बजेट जो हम जो पूर्णांग बजेट ताहा आमे आनिबु अर्थात से एक निश्चित भाव में कहते आमे ही निर्वाचन में जीतुचु बोली एथुरु से स्पष्ट करते द्वितीय कथा हूँ एथर बजेट रे कौन रही मुख्यांश जदि आमे कहबा ताकु जदि एनालिसिस करबा से एनालिसिस रो गोटे कथा जे घर को बेसी भाव में प्राधान्य दि जाइछि गृह को महिला मान को प्राधान्य दि जाइछि किशोरी मान को प्राधान्य दि जाइछि लोक मानकर घर किपर निर्माण हो से कथा कहैछि एवं मोटामोटी आमे जदि कहबा ताहले लोकंक पॉकेट को किभली भाव में पैसा आसीबो तांको जीवन धारण मान उन्नत हबो सेमानकु शिक्षा किभली मिलिबो सहजरे स्वास्थ्य अवस्था किभली उन्नति आसीबो ताकु विशेष भाव में गुरुत्व दि जाइछि अर्थात कोउट ना कोउटी पीपल सेंट्रिक गोटे दृष्टिभंगी रखाई हे तो या विरोधी मैंने कहीपारती जे यहाँ निर्वाचन को दृष्टि रखी कर किंतु हो पारे किंतु सेमिति कौन इंडस्ट्री सेक्टर को बा अलग कौन सेक्टर को बहुत बड़ पुश दि जाए नहीं कि पॉलिसी नीतिगत कौन बड़ परिवर्तन कर जाए नहीं केवल एति कर पीपुल सेंट्रिक साधारण लोकंकर कौन आवश्यकता रही शिक्षा स्वास्थ्य बासगृह ये तीनिटी उपर विशेष भाव में फोकस कराई यही तीनिटी द्वारा लोकों को यही मेसेज देवाक माने चेष्टा कराई जे आगामी दिन में जितेबाला सरकार जदि आमे आसु ताले आमे ए सब देशर युवगोष्ठी ऊपर फोकस करा जाउची देशर युवगोष्ठी सशक्त होउचंती शिक्षा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आसुची स्किल इंडिया जो युवक युवती दक्ष होउचंती स्टार्टअप ऊपर मध्य फोकस करा जाइची जहां अनुमान करा जाउतला विक्रम की बड़ बड़ शिल्प अपेक्षा सरकार स्टार्टअप ऊपर फोकस करि पारंती ता मध्य एथरा बजेट रिफ्लेक्शन रहिची धन्यवाद विक्रम आपनक समस्त सूचना पाई मोस्त अतिथि अछंती आमे आलोचना आगो को बढ़ाइबा श्रीयुक्त प्रशांत शतपथी आपण पाखु आलोचना आरंभ करने को चाहिए मोटामोटी बजेट हेडलाइंस आपण सामने आम रखिलु तो ये जो बजेट टी आसी जदिओ ये अंतरीण बजेट पूर्णांग बजेट जुलाई मास आसो ये बजेट रु आपणकर एक्सपेक्टेशन जहाँ थिला आपण को केमती देखंती पूरा बजेट को आपण देखो ये बजेट रे विशेष किसी आमर एक्सपेक्टेशन नथिला आम जहाँ आशा करूँ बजेट से ही होती अर्थात ये बजेट केवल गोटे स्वप्न देखा भली किसी टैगलाइन्स किसी हेडलाइन्स बजेट तैयारी जोटा को आज दिन तमाम टीवी चैनल में चलो किंतु ये बजेट्र भीतर कथा जोटा लोकों पाखे पहुँचवा दरकार लोकों पाई जो बजेट हवा कथा से भली किसी बजेट है ना बजेट्र आभिमुख्य केवल स्वप्न देखा वास्तवता ठार बजेट बहुत दूर में आपड़ भी आलोचना करते 10टी मेन हेडिंग्स आप दौरान जे कौन कौन एम बजेट्रे कर 10 मेजर पॉइंट्स आप कहते आप कहले देशर युवक मानी महिला मानी शिक्षा क्षेत्र में रोजगार क्षेत्र में मुझे कहबी जे एथर किसी सेमती किसी फंड आलोकेशन आम देखिपारूना जे कौन कौन होती मत आप कहतु इंटार रेलवे बजेट आगुरी जो आगुरी सेपरेट आसूला आम टाइम पाऊँ रेलवे बजेट डिस्कसन करने आर मेन बजेट जो मर्ज करगला आज दिन में आम केवल रेलवे विषय एति जानिलु जे 4टी कॉरिडोर होची बस आ रेलवे विषय कहार केते धरतु ईस्ट कोस्ट रेलवे को केते सेंट्रल को केते साउथ सेंट्रल को केते तार फंड आलोकेशन कौन होती कौन से विषय की जानवर अवकाश ना जाना बेलू डिस्कसन इज ओवर आम जो कहूचे युवकों रोजगार कथा ये स्टार्टअप कथा जो कहुचे स्टार्टअप आज कथा नुहे स्टार्टअप भी आम 5 वर्ष आम देखी देखी आसू स्टार्टअप को लोन दवा कथा प्रत्येक वर्ष बजेट रे कहुए स्किल इंडिया कथा प्रत्येक वर्ष बजेट रे कहुए मत आपको कहतु स्किल इंडिया लास्ट लगातार जब आप लास्ट 5 वर्ष को आप अनुधान करेंगे डाटा को ताले आप देखिए जी लोक स्किल इंडिया थ्रू रे ट्रेनिंग नौकरी आपंकर ट्रेनिंग दि जाऊँगी तार निजुक्तिर सुजोग लेस दैन 1%। अर्थात जब लक्ष लोक आप ट्रेनिंग दौरान स्किल इंडिया अधीन में ताले 1000 लोक निजुक्तिर सुजोग ना तो बाकी 69,000 जो युवक युवती जो मैंने ट्रेनिंग नहीं आसुच्च स्किल इंडिया से कौन निजुक्तिर सुजोग सृष्टि कर मोटामोटी गरीब कृषक महिला युवपीढ़ी को आप देखो बजेट रे फोकस करा 3 कोटी महिला लक्षपति दीदी बनिबे जहाँ देखा कि सरकार जो फोकस रही सहित बड़ कथा कि आप देखो बजेट रे 9-14 वर्षर झील को टीकाकरण कर ये गोटे बड़ पदक्षेप नुहे कि देखो सोशल सेक्टर कथा बजेट को आप 2टा भाग में विभक्त करेंगे टीकाकरण हूँ गोटे सोशल आप गोटे सामाजिक न्यायर कथा टीकाकरण देश प्रथम थर पर होना टीकाकरण देश स्वाधीनता पाइला पर कंटिन्यूअसली और कन्स्टांट बेसिस रे टीकाकरण हो चली आम जदि आज देखुचे सर्वाइकल कैंसर पर झील मानू आम टीका देवार आवश्यकता अच्छी ताले दिज्वा उचित किंतु ता सहित रोजगार बढ़िबा युवक युवती मानकर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करवा वर्ष को 2 कोटी रोजगार दबा ए व्यवस्था ता सहित आटाच करवा कथा नुहे एवं महिला माने महिलार अर्थ नुहे केवल लखपति दीदी
आपण लखपति दीदी जरिया जदि कोटी महिला को आपण टार्गेट करूचंती मते कहतु ए देशर आज दिन में 82 कोटी लोक 5 केजी चाउल पर निर्भरशील सेमानक पई आपण कोन बजेट करचंती बजेटर जार्गन भितर आम पशिबा पूर्व बजेटा साधारण लोकों पई कोन तयारी करछि दरदाम वृद्धि उत्कट होइछि ताको हटेबा पई ताको कर्व करबा पई ताको कंट्रोल करिया पई सरकार कोन बजेट निष्पत्ति नैचंती एवं अनएम्प्लॉयमेंट ताको कंट्रोल करिया पई सरकार कोन निष्पत्ति नै हमर डिविडेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड को कंट्रोल करिया पई आपण कोन करछि लोकाभिमुखी होइछि ना केबळे होइछि बजेट आज्ञा देखंतु एटा होछि गोटे इंटरिम बजेट आउ इंटरिम बजेट रे विशेष करके आशा करा जाउथला जे पूर्ण जेहेतु एटा पूर्णांग बजेट प्रस्तुत करा जाउनी तो इंटरिम रिलीफ आशा करा जाउथला जोटा हमर प्रशांत बाबू कहउथले जे निश्चित भाव में विभिन्न वर्ग रु विभिन्न रिलीफ रो आशा करा जाउथला जेमिति आपण जदि देखिबे जे जो दरदाम वृद्धि को नेइकरी जे विशेष करके गैस बा पेट्रोलियम दर उपरे किछि गोटे रिहाती मिलियो बोली किछि गोटे आशा करा जाउथला आपण टैक्स स्ट्रक्चर रे बिल्कुल अपरिवर्तित रही से गोटे परिवर्तन आसो बोली आशा करा जाउथला किंतु सेमिति किछि उल्लेखनीय नाही जोटा आपण कहउचंदी जे कि जेहेतु आपणकर निर्वाचन आसन्न अछि बा एटा से निर्वाचन जोगु एटा इंटरिम बजेट होउची एथरे आपणकर किछि पॉपुलर इनिशिएटिव निश्चित भाव में निया जाइछि जेमती आपण जोटा कहिबे जोटा कहउतिले जे कि जे एसएचजी महिला मानकर जो लक्षपति कथा कहंतु बा 100 कोटी घर को आपणकर जो 100 यूनिट लेखा जो इलेक्ट्रिसिटी फ्री दबा कथा कहतु कि गोटे डायरी डेवलपमेंट कथा कहते एवं किसी पीएम आवास योजना माध्यम किभली भाव में आहरी 2 कोटी लोक घर दि जा पार से भाया कथाटी कहुई किंतु ता भितर कोठी ना कोठी गोटे एथरे जो बजेटटी गोटे भाषणबाजी रे सीमित होइकी रही जाइछि बोली कहिया पड़िबो कहीं ना आपण देखंतु से जीडीपी रो डेफिनेशन चेंज करूछन जीडीपी आम समस्त जानी जे जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कि से कहउछन गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस सिमिलरली एफडीआई आम समस्त जानी जे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किंतु से कहउछन फास्ट डेवलप इंडिया जदि आपण एई रेट रे आपण जदि आपण निजे निजकू गोटे सर्टिफिकेट दबा पे गोटे इंटरिम बजेट रे एवं पर्टिकुलरली जतबे इलेक्शन रा आवश्यकता इलेक्शन को फेस करिया को जाउचंदी आपण एई एटा गोटे अलगा नैरेटिव सेट करिकरी लोकन को आकर्षण करिया को चाहुचंदी ताले मु कहबी जे कि आज तारिख आपण कहउचंदी अलगा किछि गोटे नैरेटिव सेट करा जाउची जेतु आगो निर्वाचन प्रसंत कंप्लीट करिया को दियौ मैडम मोर गोटे कहिबार कथा अछि जे आज तारिख रे लोकन को जदि किछि डिस्टर्ब करूची रियली डिस्टर्ब करूची सेटा होची इन्फ्लेशन रेट अच्छा जदि इन्फ्लेशन रेट पई एथरे कंट्रोल करिया पई सरकार को तरफ ए बजेट रे किछि सेमिति आखि दृश्य इनिशिएटिव निया जाइनी एवं जदि सी एमिति ना चेंज करूचंदी बा ए जो डिफरेंट नैरेटिव करिया को चाहुचंदी मु भाबुची ताले इन्फ्लेशन रेट को सी ताको डिवोशन रेट कर दियंतु काहे कि ना से तो सारा राष्ट्र को धर्मर ये बांधी रखिया को चाहुचंदी एवं गोटे अलग नैरेटिव करिया चाहूछन जो जो दर वृद्धि होउची सेटा लेट द पीपल पे अलगा किछि आपन को मतरे कि अलगा किछि गोटे नैरेटिव सेट करा जाउछि प्रशांत बाबू जेतबे आयकर सीमा अपरिवर्तित होइछि गत थरर आयकर स्लैब एथर लागू डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट टैक्स अपरिवर्तित ये कर व्यवस्था रे कोनोसी परिवर्तन हेनी समस्तकर एक्सपेक्टेशन थिला एथर गोटे किछि परिवर्तन होई पारे विशेष करके चाकरिया माने जो माने कर देंती समान अपेक्षा करितले ये गोटे समानक पई गोटे बड़ झटका बोली कुआ जाई परिबो कि आशा आशा रे रही गला देखंतु जो माने आशा करूथिले किछि परिवर्तन हबो सेमानक भितरे मु नथिली व्यक्तिगत भाव में मुझे नथिली कारण मुझे जानी एमानकर जदि लास्ट 6-7 बजेट को आपन देखिबे आपन बुझीजिबे जे एमानकर इंटेंशन कोन अछि जेते रेगुलर बजेट जो माने टैक्स स्लैब टाको चेंज करदिनी से इंटरिम बजेट रे कोन टैक्स स्लैब चेंज करिवे एवं एबे जोटा कहा जाउछि देखंतु एबे कोन होउछि बजेट रे आगुरु बजेट टाको गोटे स्पीच पढिया पे 3 घंटा 4 घंटा समय लागुथला नोट पॉइंट वाइज सब नोट गुडा के तो क्लियर पढा जाउथला जो माने एक्सपर्ट बसुथिले से माने बुझुथिले बजेट भितर कोन अछि तो बजेट रे स्पीच ने कि डिस्कशन होतला और डिबेट भी होतला और साधारण लोक पहुंची पड़थिले बुझी पड़थिले जे बजेट भितर अछि कोन एबे खूब कम समय भितर गोटे पेपरलेस बजेट कही कि आम कौन कर गोटे बुलेट पॉइंट रे केवल केते गोटे पिन पॉइंट जिनस कही दौचे जोटा को आपन केवल हेडलाइन करेंगे और टैगलाइन करेंगे टीवी चैनल रे सोशल मीडिया रे ता भीतर कौन से नोबडी नौ जब आपन कहतु गोटे कन्फ्यूजन होची 300 यूनिट बिजुली फ्री 100 यूनिट बिजुली फ्री काहा को किए तार लाभार्थी हेबे से विषय हमर एपर्यंत किछि क्लैरिटी नाही आ गोटे कथा जो कॉन्फिडेंटली बट विथ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी मैडम Nirmala Sitharaman said that in July our government would come out
with a full-fledged budget for the coming year. So this was a budget which I would term as a very practical budget, catering to the need of all these sections of the community, whether there are farmers, there are youth, there are women, and there are poor people. In fact, first part of the budget that she presented was actually focusing on the achievements of Prime Minister Modi's government in the past 10 years. And thereafter, sector-wise, she talked about all the initiatives that she would be taking. But I think there's a lot of focus on social aspect and a lot of focus on infrastructure creation also. So I think a very wholesome kind of budget. Holistic development of the country is aimed at, and I don't think anybody would say anything against it, but I think there are naysayers, there are critics who do not find anything good in whatever Prime Minister Modi and his government does. So I think those people would be saying something against the budget, but this is a very wholesome budget. It will take care of all the interim needs of the country. Thank you. तो मैडम कहते कि पीपुल सेंट्रिक बजेट है आप शुणुते के पीपुल सेंट्रिक बजेट और विकास पर फोकस कर सरकार विकास को फोकस कर देशर केवल अभिवृद्धि हेब देश केवल विकास दिगे आगेब तापर सरकार फोकस कर जनक जन प्रतिक्रिया आप सामने रखुचु जिते सरकार फोकस रही चाषी सरकार फोकस रही स्टार्टअप भित्तिभूमि युव ता सहित सरकार फोकस कर भाव में डेभलपमेंट पर फोकस कर पीपुल सेंट्रिक बजेट बोली साधारण कहुच्छी तो यार भितर किंतु जमती आम आलोचना करुच्ची अपरिवर्तित रही आयकर सीमा गत थर आयकर स्लैब एथर लागू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स अपरिवर्तित प्रशांत बाबू जमती आम आलोचना करुले जो कथा अर्थमंत्री कहते कि टैक्स रिटर्न फाइल सहज और सरल करमती एनालिसिस करेंगे कहीं 2025 वित्तीय वर्ष में कर कौन चेंजेस हेनी कौन परिवर्तन हेनी 2025 पर्यंत जो सॉवरेन फंड कर रिहाती सीमा बढ़ा केवल से नुहे जो पुराना कर विवाद प्रत्याहार कराद्वारा कि लोक उपकृत हेबे कि देखो ये भी गोटे गोटे जार्गन कथा होची इनकम टैक्स रिटर्न रो फाइलिंग प्रोसेस सिंप्लिफिकेशन होईची जे फाइलिंग करूछन दयाकरी पचारे से कहबे जे केते सिंप्लिफिकेशन होईची आमे आगुर इनकम टैक्स रिटर्न रो स्लैब तो चेंज कले नाही एथर गोटे कन्फ्यूजन करछन्ती से गत थर जो 7 लाख टंका जो बढ़ाइथिले 5 लाख 7 लाख टंकार जो स्लैब टाकू विदाउट एनी डिडक्शन सेटा एथर से कहले किंतु अनेक टीवी चैनल बोधे भावुंट और सोशल मीडिया चलुची 7 लाख जाए एनहांसमेंट हो गला किसी एथर एनहांसमेंट नहीं टैक्स स्लैब जहाँ सेयार होइछ नंबर 2 है जी 7 लाख टंकार दीटा आपणकर रिजिम अच्छे गोटे ओल्ड रिजिम और गोटे न्यू रिजिम इनकम टैक्स रे जे 7 लाख टंका स्लैब को जब आप न्यू रिजिम को आसुँच ताले आपड़ किसी रिडक्शन क्लेम करें ना जथा एटीसी अंडर आपंकर किसी लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट कर हेल्थ क्लेम हेल्थ पॉलिसी इन्वेस्टमेंट कर जीपीएफ पीपीएफ रे किसी इन्वेस्टमेंट कर हाउसिंग लोन कर इंटरेस्ट दौरान प्रिंसिपल किसी देते ये सब जिनसर किसी रिडक्शन आप क्लेम करें ना बाकी रहा जीएसटी आज इट इज थिला से रही सी जो जीएसटी उपर गोटे दुटा जिनस कहले जे आमे किसी इंडस्ट्री लोकंर ओपिनियन नहीं जो मैंने कहले कि हाँ यहाँ बहुत भल आउ गोटे पॉजिटिव साइन देखो जो 100 जन 94 कह पॉजिटिव साइन कारण इनकम टैक्स जीएसटी रेड्र भी डर रही किंतु जीएसटी आज दिन में एत टेक्निकल ग्लेचेस अच्छी जोटा कि जीएसटी आसबार 7 वर्ष पर सॉर्ट आउट हो पारू नहीं अनेक अच्छी रिफंड प्रोसेस रे बहुत प्रोब्लेम अच्छी अनेक जगह एमती अच्छी जहाँकि जीएसटी ऑफिसर बुझीपारना केमती मीट करेंगे से प्रोब्लेम को नंबर 2 आउ गोटे कथा से कहले 2.4 टाइम्स आमर इनकम टैक्स रिटर्न दबारे आम बढ़ी आग अपेक्षा लास्ट 10 इयर्स भितर आमर जो पॉपुलेशन बढ़ुची एवं आम जो इनकम येटा को बढ़ाऊे और दरदाम भी बढ़ुची जीएसटी धरतु गोटे कहुच्छे जीएसटी कलेक्शनटा बढ़ुची मास पर मास आम जीएसटी कलेक्शन आम भल पाचे आपड़ जो जिनसर दरदाम बढ़ी नेचुराली जीएसटी पर जो जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ी जो जिनसटार दाम 100 टंका तापर जब 18% टैक्स से 100 टंका जिनसटा जब 200 टंकार आप पहुँचे देले नेचुराली 36 टंका गवर्नमेंट को टैक्स आसो तो दरदाम बढ़िया फल जीएसटी कलेक्शन होची किंतु एटा भारतर अर्थनीति आदौ भल नुहे रिफॉर्म परफॉर्म एवं ट्रांसफॉर्म को सरकार गुरुत्व देइछन्ते एवं विशेष करके आपण देखंतु पूर्वांचल राज्य को ड्राइविंग सीट को एथर देखबा कि बजट रे मध्य निया जाइछि एवं जी आपण जदि जीडीपी रे कहउतिले गवर्नेंस डेवलपमेंट एवं पी होछि परफॉर्मेंस बोली सरकार को पक्षरु कहा जाइछि मेरी बाबू विशेष करके मिडिल क्लास मध्यवित्त श्रेणी लोक मानकर जो अपेक्षा थिला जो एक्सपेक्टेशन थिला बजट रे जो घोषणा करा जाइछि आपण तो केमति देखंती नहीं देखंतु मध्यवित्त को पई बेसिकली मोटामोटी इंटरिम बजेट रे सेमती किसी रिफ्लेक्ट हेनी गोटे जिस गोटे नजर में मोर आसी जे कि
से कुहाଯାଇଛି जे मध्यवित्त मानक पई जो घर तैयारी पई तांको पई किछि व्यवस्था जोटा करा जीवो सेटा एक्चुअली जोटा प्रशांत बाबू कहउतले एकदम बुलेट पॉइंट रे दिया जाउची तेणुकरी ताकू नहीं कि तार आगामी स्थितिटा कौन रहिबो एवं कौन एक्जाक्टली हबो सेटा एक्चुअली वर्तमान आम आकलन करें किंतु कथा हूँ मुझे बुझिली जे कि मध्यवित्त मानक पई विशेष करी किछि नाही आउ जो पर्टिकुलरली जो आमर जो टैक्स स्ट्रक्चर रही से जो टैक्स स्ट्रक्चर भी अपरिवर्तित रही आप जदि देखिए मुझे आसिया पूर्व मुझे देखुली गोटे जगह गोटे जो आप नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया रे गोटे डिबेट रे देखुली से पूर्वतन नीति आयोग माने अध्यक्ष भी कहते जे जो आमर जो टैक्स स्ट्रक्चर रही यूपीए गवर्नमेंट रे जो स्ट्रक्चर होता एबे तार रिवर्स स्ट्रक्चर अच्छी आपणकर जमी डायरेक्ट टैक्सेस कंट्रीब्यूशन अधिका थिला व्हेयरएज आमर एठी माने एबे कोन है ना इनडायरेक्ट टैक्स रो कंट्रीब्यूशन अधिका है तो जोटा कि कॉर्पोरेट कल्चर को एनकरेज करुच्ची किंतु कथा हूँ यही 10 वर्ष जो यही पीरियड रे आपणकर जो भली भाव में कॉर्पोरेट सेक्टर रो इन्वेस्टमेंट बढ़िया कथा जुलाई पूर्णांग बजेट पर टिकस रिहाती मिल पारे कि जुलाई पर्यंत अपेक्षा करबा को पड़ी पारे कि मिहिर बाबू नहीं माने जदि जहाँ एक्सपर्ट माने कहउछंती जो टिकस क्षेत्र रे से माने जेहेतु लास्ट ईयर रे पर्टिकुलरली करथिले एथरक सेमिति आउ किछि करिवार नाही किंतु गोटे कथा होची जे कॉर्पोरेट जो पर्टिकुलरली टैक्स स्ट्रक्चर कथा कहूँ मु इट इज नॉट आपणकर जनरल टैक्स नुहे